Good evening, everyone. We have lost 10 minutes. No problem. We'll continue. We'll take extra 10 minutes to compensate the time. Okay. So I think you have already taken my few of my classes, and then you know that how the way of my teaching. So today we are going to talk about farm bills. Firstly, I would like to know what you people know about it. आप लोग क्या जानते हो फार्म बिल्स के बारे में, एंड हाउ वुड इट इम्पैक्ट, मतलब आपका टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हाउ वुड इट इम्पैक्ट, मतलब इसकी रेलेवेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ऑल दिस फार्म बिल्स. So first few minutes will take your understanding, then we'll continue with with exploring all the things in the farm bills. I think I'm taking it up in two parts, so that we can understand in a better way. Fine, please go ahead. So there are three bills which were introduced in the parliament. One is Farmers Produce Trade and Commerce Act, Okay. which is basically a APMC bypass act, which says that you can trade and commerce your produce outside the Fine. APMCs. The APMCs Good, are not good. necessary. Others Good. is Farmers Agreement of Price Assurance, I guess. Yes. That's about contract farming and stuff. And third is about Essential Commodities Amendment. It's an amendment bill which changes certain factors in the essential commodities list. So now the people can store various essential goods which were not allowed before this. Earlier. Okay, Yes. fine. Good. Anyone else who would like to contribute? Anyone else? So can anyone tell me that what is the relevance in the interview preparation of TISS? सर एज फार्मर्स का सारा एसोसिएशन है और इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन फार्मर्स है, साथ में इकोनॉमी में भी काफी अच्छा मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है. हाँ, साथ में मतलब इस बार भी रिसेशन में फार्मर्स वाला एग्रीकल्चर वाला सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म किया, और उसी को इम्पैक्ट करते हुए तीनों बिल्स हैं, तो उनके काफी सारी चीजों पे ये इम्पैक्ट डालेगा. तो ओवरऑल बहुत सारे एरियाज हैं जिन पे अगर फार्मर्स पे इफेक्ट पड़ता है तो ओवरऑल कंट्री के बहुत सारे की एस्पेक्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है. जैसे उनकी हालत से HDI का चेंजेस, इकोनॉमी चेंजेस, पॉवर्टी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, ऐसे बहुत सारे. तो ये सारा मिला के मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा मैटर है, तो जरूरी हो सकता है. अच्छा, ठीक है. नाइस. ओके. एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? No one? Okay, fine. So we shall start. So as Priyanshu mentioned, हमारे पास में 3 acts हैं. There are 3 acts. अब बहुत बड़ा नाम है उनका, ठीक है. So we will see them in slides. ठीक है. First of all, what we are going to learn in this class. पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों बिल्स के थोड़े फीचर्स देख लेंगे क्या है. जिस मेजर बात पे आई एम गोइंग टू फोकस इज दिस MSP. व्हाट इज दिस MSP? MSP है क्या चीज? है क्या चीज? हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे. MSP कैसे आया, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, क्यों आया ये, और इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है. ठीक है. मैं पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाऊंगा किसी भी. मैं सिर्फ वो वाले MSP क्या चीज है और लोग क्या चाहते हैं इससे, APMC क्या चीज है, क्यों है, एग्जिस्टेंस में क्यों आया ये, मतलब ऐसा क्या हुआ कि APMC अलग से लाना पड़ा या कुछ आया ऐसा कुछ. That we are going to study. ये थोड़ा हम में पढ़ेंगे. बाकी हम बिल्स के बारे में, हम 3 बिल्स हैं, 3 बिल्स स्पेसिफिकली जो है फर्स्ट बिल को ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे in this lecture. Then we will in the next class other two bills will be discussed in detail. So in these 2 classes we are going to cover all the farm bills and its relevance. Okay. ये 3 बिल्स हैं, बहुत बड़े नाम है. फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स
Promotion and Facilitation Bill 2020, Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020, the Essential Commodities Amendment Bill 2020. देखो 3 बिल्स हैं ये स्पेसिफिकली एक आपने सुनी होगी शायद बात बार बार सुनी होगी that someone said that we want to double the farmers income by 20 anyone कब तक करनी है हमें डबल फार्मर्स इनकम So 22. 2023. नो 2022 Okay. ठीक है तो आई थिंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शुरू से इस चीज को कोशिश कर रही है इसको करने के लिए टू इन व्यू ऑफ दिस मतलब इन व्यू ऑफ दिस कि हमें डबल करनी है इनकम ये 3 एक्ट्स जो है पास किए गए हैं ठीक है और इन तीनों एक्ट्स को बेसिकली हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बोल सकते हैं वी कैन से देम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ठीक है रिफॉर्म्स दीज आर रिफॉर्म्स सुधार हैं ये वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर ऐसे कुछ करके बोल सकते हैं या फार्मर रिफॉर्म्स बिल्स हो गए ताकि उन लोगों की इनकम बढ़ जाए व्हाट इज द पॉइंट मतलब व्हाई डू वी वांट टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम टेल मी हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं पहली बात तो क्वेश्चन यही आ गया हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं उनकी इनकम सर जैसे प्रांशु ने बोला था सर कि उनका कंट्रीब्यूशन है लेकिन सर जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है अगर Very good. और दूसरा होल्ड ऑन सूरज होल्ड ऑन टेल मी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का स्टैट्स तो पता नहीं है मुझे आई थिंक 17% या समथिंग है उनका ज्यादा नहीं है इतना मुझे पता वेरी गुड इतना ही है डोंट वरी इतना ही है 17% 18% के आसपास है मतलब आई थिंक अराउंड 20% के आसपास ही होगा इससे ज्यादा नहीं है गुड अच्छा एक चीज तो ये होगा कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% के आसपास है 15 से 20% के आसपास है और वही ना 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करती है वेरी गुड द सेकंड पॉइंट इज 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है 50 से भी ज्यादा आई वुड से अराउंड 60% या ज्यादा ही पॉपुलेशन जो है इसी में ही लगी हुई है ठीक है और बताइए उसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी ज्यादा मतलब जो जैसे जो सर्विस सेक्टर में है ना सर उधर ना पे स्किल्स अच्छा रहता है और पॉपुलेशन कम है तो ज्यादा से ज्यादा जो जीडीपी का जो है वो है ना पार्ट है ना वो खुद ले जाते हैं और ये लोग को कम मिल पाता है इसीलिए पॉवर्टी में ये लोग रह जाते हैं ठीक है चलिए ठीक है ये 2 रीजंस मैं कंसिडर कर लेता हूं और क्या रीजंस है व्हाई डू वी वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है मतलब पूरा और दूसरी बात की इसकी वजह तो से उससे क्या फर्क पड़ता है अगर इनक्वालिटी बढ़ रही है तो सर इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो मतलब बहुत सारे फर्क पड़ जाते हैं वैसे तो कैसे पर ये थोड़ा सोचना पड़ेगा सर एक और मैंने एक कहीं पे एक आर्टिकल में पढ़ा था सर या फिर लास्ट लेक्चर में था अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो उसका ना थ्री टाइम्स कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में हाँ ठीक है ये तो सब जो है ना बड़े स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करके सब होता है आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट फाइन बट टेल मी कि अभी जो प्रियांशु ने बात बोली थी अभी मैं क्या बोल रहा था प्रियांशु आपने इनइक्वालिटी बढ़ जाती है हाँ इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी बढ़ गई तो क्या हो जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा बढ़ जाए क्या दिक्कत है उसमें सर फर्क ये पड़ेगा कि जब फार्मर्स है वो कम कमाएंगे तो जो फार्मर्स हैं वो मतलब जो आने वाले हैं वो उसको गिव अप करेंगे और वो दूसरे ऑक्यूपेशन में जाएंगे ताकि वेरी गुड वन पॉइंट लेकिन आर्यन आई टेक योर पॉइंट गेट बैक टू योर पॉइंट पहले प्रियांशु का पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू हैव रेज्ड अ गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट बट यू हैव टू बैक द रीजन कि मतलब बैक विद द रीजन कि क्यों ऐसा करना पड़ेगा हमको उससे बहुत बड़ा आंसर निकलेगा एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है यस सर ओके एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है वी विल गेट बैक टू दिस आई वांट टू नो कि अनस्टेबिलिटी आएगी कंट्री में और क्राइम्स बढ़ेंगे सब कुछ होगा सर
वेरी गुड, lot, वेरी a गुड. lot of पॉइंट इज कि इनइक्वालिटी बढ़ने से क्राइम बढ़ेगा. वेरी गुड. लोगों में एक रिजेंटमेंट होगा. रिजेंटमेंट, व्हाट इज रिजेंटमेंट? कि भैया मेरे को गुस्सा है, अच्छा उसकी वजह से वो सारा पैसा तो वो खा जाता है, मेरे को गुस्सा ही नहीं है. क्राइम बढ़ेगा. वेरी गुड पॉइंट. और सर most of इनइक्वालिटी की revolution वजह जो- से मतलब अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट कम होगा, एजुकेशन लेवल कम होगा और नहीं, ठीक है, वो तो बिल्कुल होगा. और बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, बहुत बड़ा रीजन है कि इनइक्वालिटी sir, बढ़ेगी तो बहुत बड़ा चीज होगी. मोस्ट ऑफ रेवोल्यूशन जो होते हैं सर इनइक्वालिटी की वजह से ही होते हैं. जो जैसे? गवर्नमेंट के जैसे अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन ले सकते हैं सर. उधर भी सर ये था ना, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा था उधर. हाँ, हाँ, क्योंकि मतलब जो भी क्या बोलते हैं उनको, लॉर्ड्स बोलते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे. और जो ठीक है, समझ में आ गया, वो समझ में आ गया. द क्वेश्चन इज कि इनइक्वालिटी बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होगी? sir, death rate Yeah. will increase. That will lead to farmer suicide because they'll be like they won't be able वेरी to. वेरी गुड. फार्मर सुसाइड होगा, बट चलो फाइन. एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी रिसेंटली 10 साल पहले हुई थी, अगर आपको याद हो तो. 10 साल पहले एक बहुत बड़ी चीज हुई थी. एनीवन रिमेंबर दिस मूवमेंट? व्हाट इज दिस वॉल स्ट्रीट मूवमेंट? अरे भैया, ये इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था और इंडिया Yes, में भी sir, ये हुआ economic था. crisis, world economic crisis. नहीं, दिस इज नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस. वॉल स्ट्रीट मूवमेंट जो हुआ था यूएसए में हुआ था, ठीक है. हाँ सर, और- पर इम्पैक्ट तो ओवरऑल पड़ा था ना. नहीं इम्पैक्ट, नहीं, सुनो, इम्पैक्ट क्या हुआ था? हाँ चलो बताओ, इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ था उसका? लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया था, मतलब सेविंग्स पे ज्यादा. और ऐसा नहीं. ओके, ठीक है. अरे वॉल स्ट्रीट मूवमेंट आपने गलत ही समझ रहे हो. वॉल स्ट्रीट मूवमेंट में क्या हुआ था? वॉल स्ट्रीट जो है वहां की, यूएसए की, वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच गए. कहने लगे कि 99% ऑफ यूएसए's वेल्थ इज विद 1% ऑफ यूएसए पॉपुलेशन. यस. हाँ, याद आ 99:1. ये वाला मूवमेंट हुआ था. ये कब हुआ था? 2010 के आसपास हुआ था. ऐसा ही सेम मूवमेंट उसी कॉन्सेप्ट पर 11 इसी से इंस्पायर होकर इंडिया में भी हुआ था. वो क्या था? इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता ही जीता था, उसके तुरंत बाद हो गया था बहुत बड़ा मूवमेंट. Do anyone remember this Anna Hazare movement? Corruption, anti-corruption. Yes, very good. अल्टीमेटली देखो, वॉल स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से अरब में भी बहुत सारा आया कि नहीं, हमें भी एरो स्प्रिंग भी डेवलप हुआ, और इन दोनों से डेवलप हुआ अपना अन्ना हजारे मूवमेंट. ठीक है. जब इनइक्वालिटी बढ़ती है ना, तो ऐसे मूवमेंट्स पैदा होते हैं. रिमेंबर दैट. On these movements has the capacity to throw out the government altogether. बाहर ही हो जाएगी. जो कांग्रेस का आज की डेट में हाल है, the very important factor is CWG scam, 2G scam and Anna Hazare movement. The consequence of which is Anna Hazare movement, which is consequent of overthrowing the power. जो मतलब कांग्रेस की जो आज की डेट में हालत हो रही है, शायद 50 MLA भी नहीं है उनके पास. दैट इज इनइक्वालिटी. ये ताकत होती है कि इसीलिए हर गवर्नमेंट चाहती है इनइक्वालिटी कम से कम हो. ये रीजन होता है मेन उसका. ठीक है. इज इट वेरी क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. ओके. तो जब सरकार ही नहीं रहेगी, तो जो सरकार बिल बना रही है उसका कोई पॉइंट ही नहीं है. इसीलिए वो चाहते हैं, एक तो पॉइंट हो गया इनइक्वालिटी कम करनी है. वेरी गुड. इसीलिए वो चाहते हैं कि डबल की जाए इनकम. एक रीजन इनइक्वालिटी कम करनी है. दूसरा रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, अंडरस्टैंड इट इज, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर. जब फार्मर्स की डबल इनकम होगी तो फार्मर्स के बच्चे आर गोइंग टू स्कूल्स, पढ़ाई करेंगे. ठीक है.
उस स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर टीचर्स को जॉब मिली, ठीक है। वो स्कूल में बच्चे जो है अपने अब स्कूल जो बच्चे हैं फार्मर्स के, जब उनके पैसा आएगा फार्मर्स के पास में, तो बच्चे आर गोइंग टू डिमांड फॉर द टॉयज। बच्चे हैं टॉयज की डिमांड करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट प्रोसेस। सो क्या होगा, टॉयज की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पैसा है उनके पास, बच्चों के लिए टॉय भी खरीदेंगे वो। जब वो उस बच्चे के लिए टॉय खरीदेंगे, तो उस टॉय फैक्ट्री को काम मिल जाएगा जहां पे टॉयज बन रहे हैं। उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उनको सैलरी मिलने लगी, उनको काम मिलने लगेगा, तो उनको सैलरी मिलने लगेगी। नाउ देयर चिल्ड्रन ऑल्सो विल गो टू स्कूल। वो बच्चे स्कूल जाएंगे, वहां पे टीचर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। स्कूल के बाहर बहुत सारे वो आइसक्रीम वाले, ठीक है, ब्रेड पकौड़े वाले वो खड़े रहते हैं। जब स्कूल में बच्चे जाएंगे तो वहां पे वो खाएंगे भी और उनको भी काम मिलेगा। सो यू नो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर. It will overall have an impact on increasing the economy of the country. Is that very clear with everyone? Why we want to double the farmers' income? Farmers पे क्यों हम डबल करना चाहते हैं? अब एक रीजन उसमें से भी दिया गया कि भैया मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द फार्मिंग। जब फार्मिंग में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है और उनकी इनकम डबल हो जाएगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी डबल हो जाएगी। वो आई थिंक अभी कोई स्टैटिस्टिक समवन वाज गिविंग कि भैया ट्रिपल हो जाएगी अगर फार्मर्स की इनकम, ट्रिपल हो जाएगा हमारा जीडीपी अगर फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। ऐसा कुछ बता रहा था कोई। So that's how things are linked with each other. Arvind, you were saying something. I forgot what we were saying. So I was saying कि जब farmers की income कम होगी तो they'll end up farming and they'll move towards the other occupations. हाँ, very good point. अगर वो फार्मिंग मतलब अगर उनकी इनकम कम रहेगी तो फार्मिंग में, और ये हो भी रहा है, नो फार्मर्स का कोई भी बच्चा फार्मिंग में नहीं जाना चाहता। Yes. पर मैं आपको बताऊं, इवेंचुअली विद दीज बिल्स ये प्रॉब्लम कंप्लीटली रूल आउट हो जाएगी। मतलब नाउ न्यू एग्रीकल्चरल थिंग्स विल अप, ठीक है। नाउ द यूथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ दीज बिल्स, कि हाँ उनको फायदा दिखेगा एंड दे विल स्टार्ट इनोवेटिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। Anyone else who wants to know that why we want to double the farmers income by 2022? I think I have explained it. और किसी का कोई point है जो he wants to put forward? Or shall we move ahead? Yes, Shall sir. we move ahead? Yes, sir. Okay. So can someone read this to me? I do have to read it. तो जो पहला एक्ट है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020. We will read it out. This proposed legislation seeks to give freedom to farmers. Farmers को एक freedom देता है to sell their produce outside the notified PMC market yards. This aimed at facilitating remunerative prices through competitive alternative trading channels. बहुत ही मुश्किल है ये. We will break it down. Don't worry. आज I'll assure you that you will understand this bill, APMC and MSP before leaving this class. So we have इस बिल को मैंने तीन पार्ट्स में कर दिया. फार्मर्स प्रोड्यूस, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन. ठीक है. फार्मर्स प्रोड्यूस का क्या मतलब है बताइए प्लीज. जो भी प्रोडक्शन फार्मर्स करते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स. वेरी गुड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और
मतलब अगर हम लोग textile, cotton, एपिकल्चरिस्ट को silk. भी फार्मर्स करें तो हनी और भी टेक्सटाइल बहुत टेक्सटाइल कहाँ से आ गया भाई? टेक्सटाइल तो इज अ मैन्युफैक्चरिंग. Sir, matlab it's a manufacturing industry, but Commercial. initially like Cotton. cotton, silk, like Yes, cotton can be included in it, but not not that particular thing. Textiles and all. Fine. yes, yes. Okay. Sir, I'm फूल, mistaken. फल, सब्जियां, ठीक है. Yes. और क्या हो Cash गया? crops also. कैश क्रॉप्स, हाँ ठीक है, मतलब गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और बस सर यही अगर है. एपिकल्चरिस्ट को भी हम लोग फार्मर्स में काउंट करें तो हनी भी और Sugar सिल्क cane. और ये सब. अच्छा, Sugar और sugar cane, sunflower ठीक है. seeds. इस बिल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है फार्मर्स प्रोड्यूस का क्या मतलब है. इसमें फिशरी इसमें ब्रीडिंग एंड ऑल जो 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 होता है, मतलब उनका गायों का एंड ऑल दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व. मिल्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व. फाइन. तो ये सब फार्मिंग एक्टिविटी में बहुत सारा इस बिल में लिखा हुआ है. एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन इट. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज फार्मर्स प्रोड्यूस. ब्रॉडली हमने देख लिया क्या क्या चीजें होती है, और आप इसकी लिस्ट जो है डिटेल बिल में पढ़ सकते हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग इज ट्रेड एंड कॉमर्स. So what is the difference between trade and commerce? Can anyone tell me? अब पहले अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ट्रेड और कॉमर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तभी तो हम आगे कुछ समझ पाएंगे. Trade is ट्रेड और just कॉमर्स के बीच में डिफरेंस बताइए प्लीज. trade is just the sale and purchase of the produce, वेरी गुड. and trade is just a little part of commerce. Commerce includes marketing and finance, etc. Very much. It's a very lengthy. Okay, fine. Can anyone explain it in a better way with an example? I am a really fond of good examples. मैं एग्जाम्पल से पढ़ना भी पसंद करता हूँ और पढ़ाना भी पसंद करता हूँ. सर मतलब अगर मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसको हम कॉमर्स कहेंगे. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है. कॉमर्स तो हम विद इन अ स्टेट भी बोल सकते हैं. हाँ मतलब दो एंटिटीज के बीच में अगर पूरा ट्रेड के कंडक्ट को देखेंगे, जैसे आप 10 गुड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो पूरे उस कंडक्ट को एक साथ मिला के कॉमर्स कहेंगे बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. Okay. Give me good example. सर जैसे अगर हम फार्मर्स मंडी की बात करें सर, तो वहाँ पे अगर एक फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके जा रहा है और वहाँ पे वो कुछ सेल ऑफ कर रहा है या कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ ट्रेड. बट वो जो Okay. सिस्टम है सर, उसको हम जहाँ पे मल्टीपल फार्मर्स अपना प्रोड्यूस लेके जा रहे हैं. नहीं नहीं नहीं. ओके. Anyone who wants to give it a try, and shall I give the answer? Okay, चलो. सिंपल ट्रेड एंड कॉमर्स समझते हैं, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स किसी भी सेंस हो सकता है. ऐसा नहीं है कि फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है. बट हम एक फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो मैं फार्मर के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको ट्रेड और कॉमर्स की डिफरेंस बताऊंगा. मैं एक फार्मर हूं, मैंने अपनी फसल बोई और फसल को काटा. ठीक है. अब क्या हो गया, काटने के बाद में मैं उसको काटने के बाद में मैंने ट्रैक्टर में उसको भरा, और भर के मतलब किसी से ट्रैक्टर मांगा, क्योंकि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है. मैंने किसी से ट्रैक्टर मांगा, उसमें भरा, क्योंकि ऑब्वियसली किसानों के घर में ट्रैक्टर वगैरह कहाँ होते हैं, बहुत ही कम किसानों के घर में ट्रैक्टर होते हैं. हरियाणा पंजाब को छोड़ दे तो और फार्मर्स के पास में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं. तो मैंने उसको भरा, किसी से ट्रैक्टर हायर करा कि भैया मेरा ये जो है प्रोड्यूस है यहां से लेके मंडी तक ले जाओ, तो मंडी तक लेके जाता है. ठीक है. वहां पर क्या होता है, वहां पर एक, वो आपने धर्म काटा सुना है, धर्म काटा बहुत जगह देखा होगा. वहां वेइंग मशीन होती है कि आपका जो प्रोड्यूस है कितना प्रोड्यूस है आपका, 10 क्विंटल 20 क्विंटल कितना प्रोड्यूस है आपका. ठीक है. गेहूं, सपोज गेहूं, तो गेहूं को वो तोला जाता है. ठीक है. और फिर क्या है, मंडी में लेके आया जाता है कि भैया ये 20 क्विंटल गेहूं है, इसको खरीदा जाएगा. ठीक है. अब ध्यान से सुनो, मैं उस मंडी में बेचने के लिए गया. ठीक है.
और प्रियांशु उस मंडी में आया। प्रियांशु ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप कितने का दोगे मेरे को? मैंने कहा मैं आपको मतलब ये जो टोटल प्रोड्यूस है मेरा, मैं आपको 2 लाख रुपए में दूंगा। तो प्रियांशु ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, ठीक है, और मैंने प्रियांशु को वो पूरा का पूरा प्रोड्यूस उठा के दे दिया, मतलब जो गेहूं था वो उठा के दे दिया, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रेड, सिंपल ट्रेड। मतलब और बेटर एग्जांपल से, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, तो मैं दुकान तक गया, मैंने मतलब क्या हुआ, मैं आपसे गया बाहर मैंने एक ऑटो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा से मैं दुकान तक गया, दुकान पे गया, वहां पे जाके मैंने कहा फोन दे दो आप मेरे को। कौन सा फोन? उसने कहा आईफोन दे दो मेरे को, ठीक है। मैंने कहा आईफोन दे दो, तो ठीक है, तो मैंने उसे 50,000 रुपए दिए, उसने मुझे आईफोन दे दिया। दिस पर्टिकुलर एक्ट, मैंने उसे 50,000 रुपए दिए, उसने मुझे आईफोन दे दिया। दिस पर्टिकुलर एक्ट इज ट्रेड। उसने मतलब प्रियांशु ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, मैंने प्रियांशु को अपना प्रोड्यूस दिया, वीट दिया, ठीक है। तो ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज ट्रेड। समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? ट्रेड तो मतलब सिंपल, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने उसके बदले तुम्हें कुछ दे दिया, दैट्स इट। इज इट वेरी क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कॉमर्स। अब मैं अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए पहले तो मैंने एक ट्रैक्टर वाले को बुलाया कि भैया आओ, मेरा सामान जो है ट्रैक्टर में रखो। ट्रैक्टर में रखने के लिए उसको मैंने 2 मजदूर हायर किए, उनको मैंने पैसे दिए। उसके बाद ट्रैक्टर वाला मेरे प्रोड्यूस को लेके एक जगह से उस मंडी तक गया, उसको मैंने पैसे दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने वहां उसे तोलने के लिए पैसे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्रियांशु आया, उसने मुझे पैसे दिए एंड ऑल दैट। All the ancillary activities which is associated with the trade is commerce. Is that very clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? What is the difference between trade and commerce? आईफोन लेने के लिए जा रहा था, यस सर। तो आईफोन लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं यहां से नीचे गया, ऑटो मैंने करा, है ना, अपने घर से नीचे गया, ऑटो करा मैंने। ऑटो करने के बाद क्या हुआ, ऑटो वाले को पैसे दिए, फिर मैं शॉप पे उतरा, फिर वहां से दिया, वहां से मैंने फोन लिया, फिर मैं वापसी आया, मैं उस ऑटो से ही वापसी आया, तो उसके भी मुझे पैसे देने पड़े। दिस वुड बी कॉमर्स। नाउ आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स? हाँ सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? देखो, प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस। देखो, आई एम मोर फोकसिंग ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर स्टूडेंट के साथ में ये रहता है कि दे शुड, अब मैंने तुम्हें ट्रेड एंड कॉमर्स बता दिया, सो व्हेन गो टू द बिल, तो आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। जब आप पढ़ोगे ना उन वर्ड्स को, तो आपको धीरे धीरे करके बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। मैं आपको ऐसे बेसिक चीजें बता के आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, ठीक है। एंड जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना आपसे बात करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक। चलिए, नाउ understood what is farmers produce, we understood what is trade and commerce. Now we want to understand what is promotion and facilitation. Can anyone tell me what is the difference between promotion and facilitation? प्रमोट करना यानी सर आप मतलब प्रमोट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। फैसिलिटेट करना मतलब उस चीज के उस प्रोसेस में आप उसको हेल्प करेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व हो। Example, very good example. एज इन सर मैं किसी डिसेबल्ड इंसान को प्रमोट कर सकता हूँ कि यू शुड बी गोइंग, मतलब उसको ऐसे मोटिवेट कर सकता हूँ कि यू शुड बी गोइंग टू पैरा ओलंपिक्स एंड आई कैन गिव हिम थोड़ा पैसा वैसा फॉर प्रमोशन ऑफ दैट। एंड फैसिलिटेशन इज कि मैं उसका कोच, पर्सनल कोच बनूं एंड आई विल हेल्प एवरीथिंग इन माय पावर टू मेक हिम अ पैरा ओलंपिक। Okay, I think you have given a fairly good answer. ठीक है। प्रमोशन मतलब कि भाई ऐसा मौका मिले, जैसे अगर मैं अपने गेहूं की बात कर रहा हूं, ऐसा मौका मिले मुझे कि मैं हर जगह अपना प्रोड्यूस को बेच सकूं,
ठीक है, बेच सकूं, ऐसा मौका मिल गया मेरे को, प्रमोशन। और भी बहुत तरीके का हो सकता है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो एक एग्जांपल है। फैसिलिटेशन क्या हो गया कि भाई मेरे पास में बेच तो मैं हर जगह सकता हूं अपना अपना मटेरियल, अपना जो प्रोड्यूस है, अपना वीट जो है, या जो भी मेरा फार्मिंग है, बेच तो मैं हर जगह सकता हूं। बट पता चला मेरे पास में ट्रैक्टर ही नहीं है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा चलो भाई तुम्हारे ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक्टर हम तुम्हें सब्सिडाइज रेट पे दे सकते हैं, ठीक है, या ट्रैक्टर सर्विसेज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इससे फैसिलिटेट हो रहा है, मतलब मैं अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेच सकता हूं, प्रमोशन। लेकिन फैसिलिटेट कैसे होगा भाई, अगर मेरे पास ट्रैक्टर ही नहीं है तो मैं बेचूंगा कैसे भाई उसको दूसरी जगह जाके। तो उसको बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रैक्टर देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रैक्टर के अंदर पेट्रोल भी देना पड़ेगा। तो पेट्रोल को भी मैंने सब्सिडाइज कर दिया कि भाई इतनी दूर तुम लेके जाओगे तो पेट्रोल भी तुम्हारा, डीजल भी तुम्हारा फूकेगा, तो वो मैंने सस्ता कर दिया। चलो भाई, और क्या चीज चाहिए, है ना, ऐसे और भी जो भी चीज चाहिए आपको, ठीक है, उसको पूरा नहीं तो आधी तरीके से तुमको प्रोवाइड करें, ताकि आप उस अपने प्रोड्यूस को बेटर रेट्स पे और बेटर तरीके से बेच पाए। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Have you understood the whole bill now? बिल Yes. now अगर थोड़ा सबके दिमाग में आ रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूस क्या क्या होता है हमने समझ लिया, ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी समझ लिया, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ये भी समझ लिया हमने, ठीक है। ओके, नाउ वी विल गेट बैक टू अवर अर्लियर स्लाइड। ओके, अब दोबारा से पढ़ते हैं। दिस प्रपोज्ड लेजिस्लेशन seeks to give freedom to farmers, seeks to give freedom to farmers, मतलब फार्मर्स को एक फ्रीडम दे रहा है। तो इसका मतलब इससे पहले ये फ्रीडम उनके पास नहीं थी, इससे पहले इनके पास में ये फ्रीडम नहीं थी पहले, ठीक है। अभी हम समझेंगे क्या फ्रीडम नहीं थी उनके पास में। टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसीज, कि भाई ये बिल जो है फार्मर्स को ये फ्रीडम देता है कि एपीएमसी की बाउंड्रीज में, एपीएमसी मंडी बेसिकली इस मंडी की बाउंड्रीज के बाहर भी वो अपना प्रोड्यूस बेच सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लिसिट मीनिंग क्या हुआ इसका, इम्प्लिसिट मीनिंग इसका ये हुआ कि भाई इससे पहले, इस बिल से पहले वो नहीं बेच सकते थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं बेच सकते थे, कोई बताएगा मेरे को, ऐसा क्यों कर रखा है भाई, जबरदस्ती तुम यहीं बेचो उसको, ऐसा क्यों कर रखा है भाई? कैन एनीवन टेल मी? क्वेश्चन समझ में आया मेरा सबको? यस सर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इससे पहले क्यों नहीं होता था ऐसा, भाई मंडी में ही बेच रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? भाई उसका हम प्राइस रेगुलेट करने के लिए है, प्राइस रेगुलेट करने के लिए, प्राइस नॉट रियली, बट मैं कंप्लीटली रॉन्ग नहीं बोलूंगा, उस पर भी आऊंगा मैं, प्राइस रेगुलेट कैसे होता है उसमें वो भी देखेंगे हम, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर, मतलब प्राइस तो completely right answer है, पर वो उनका पर्पस थोड़ी होता होगा। सॉरी, अभी किसी ने कहा कि प्राइस रेगुलेट करने के लिए, प्राइस तो रेगुलेट उससे हो जाता होगा, बट उनका पर्पस नहीं होगा ना वैसा। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सही भी है। चलिए ओके, पार्शियली राइट है। सर, और कोई बताइए particular क्यों फ्रीडम reason नहीं थी उनके पास में? मेरे को कोई ऐसे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बट एक चीज है जिसकी वजह से अगर फ्रीडम होती भी तो भी नहीं कर पाते। जैसे एक बड़े फार्मर्स को एपीएमसी में जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसके पास, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 टन गेहूं है, तो एपीएमसी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे मेरा तुरंत 100 टन तुरंत प्रोक्योर हो सकता है। अगर मैं बाहर कहीं रखता हूँ ना, तो इतना मतलब मेरे पास से 100 टन कोई तुरंत खरीद नहीं पाएगा, एंड उसका जो मार्केट वैल्यू है वो गिरता जाएगा। कंप्लीटली फाइन, दिस नॉट द राइट, कंप्लीटली राइट आंसर, ठीक है। इस वजह से उनको ये फ्रीडम नहीं थी ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, हाँ, पार्शियली मतलब बोल ये सकता हूँ वजह इसको, नहीं बट थी, फाइन बट फाइन ऐसा फाइन। एक वो है। आई एम हैप्पी दैट यू आर थिंकिंग, कुछ ना कुछ सोच रहे हो। और बताओ ऐसी फ्रीडम क्यों नहीं थी उनके पास में यार?
यार मैं अगर पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरे पास तो ये फ्रीडम है कि मैं कहीं भी जाके पढ़ा सकता हूं। अब मुझसे कोई बोले कि भैया यही इसी स्मर्ग में जाके ही आपको पढ़ाना है, मुझसे कोई बोले, सरकार बोले मुझसे कि तुम्हें स्मर्ग में ही पढ़ाना है, तो यार जो गलत है ना। होर्डिंग की हाँ? वजह से सर, गलत है होर्डिंग की वजह से कोई भी स्टोर कर सकता है, मतलब ये अभी किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच देंगे, बहुत Okay, very good reasoning, but this is not why this freedom was curtailed, but it's a very good reason. Can we also say that the farmers might not have the resources to do that? I mean, if they were to contact like a bigger organization or somebody who would buy the product, like they wouldn't have the resources to do that. ओके, पर मैं एक बात बोलूं इसके ऑपोजिट में, ठीक है, ये मतलब जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, अगर मैकडॉनल्ड्स है भैया, उसको आलू चाहिए ही चाहिए, वो चाहते हैं कि भैया हम एक खेत में अपने मजदूर लगाएं और मजदूर से फार्मिंग कराएं, बट दे डू नॉट हैव दिस राइट। वो चाहते हैं, उनको तो आलू चाहिए, एनी हाउ उन्हें आलू चाहिए, isn't it? Anyhow उन्हें आलू चाहिए, तो वो तो they're dying to come to the person who is growing the potatoes. Why the freedom was curtailed for the farmers to sell their products outside the APMC? So because government wanted to procure maximum. Again, this is not the right answer, but it would come in MSP का आंसर, but I'm happy that you have the thought process. Fine, good. MSP का context इसी से निकल के आएगा. There Very was a good. food shortage previously, like. Fine. Good. But ये इसका रिलेटेड आंसर नहीं है, ये आंसर MSP से रिलेटेड है, हम डिस्कस करेंगे. Many mediators involved in this commerce, so ये उनको भी थोड़ी सी वर्क प्रोवाइड करता है, उनका भी पैसा मिल जाएगा. अरे भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उनके लिए हमने ये सब करा है सिस्टम, कि भैया उनमें उनके लिए फ्रीडम इनके खत्म कर दी. तो अब ध्यान से सुनो आंसर इसका. पहले क्या हुआ करता था, पहले हम वापस में जाते हैं. पहले क्या होता था, फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं है हमेशा से, आपको पता है, ठीक है. बिकॉज फार्मर्स के पास में पैसा होता क्यों नहीं है, उसका क्या रीजन है स्पेसिफिकली, फार्मर्स इतने गरीब क्यों रहते हैं. पहली बात तो फार्मर्स को पैसा जब ही मिलता है जब उनकी फसल कटेगी, पहली बात. दूसरी बात ये कि फार्मर्स को क्या बोलते हैं, दे आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट. वेरी गुड. लगान मूवी नहीं देखी है क्या तुम लोगों ने? भैया 3 साल से उनको बेचारों को बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो उनका प्रोड्यूस ही नहीं बनेगा. जब उनका प्रोड्यूस नहीं होगा तो भैया उनके पास में पैसा कहां से आएगा. यू अंडरस्टूड पॉइंट कि फार्मर्स गरीब क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं वो देर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट, वेदर, कि भैया शूटिंग वेदर हो, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. देखो फार्मर्स के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है, सूखा पड़ गया तो फसल ही नहीं आई, ठीक है, और अगर बहुत अच्छी बारिश हो गई, बहुत अच्छा मौसम हो गया और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो और प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया दैट मीन सप्लाई ज्यादा हो गई, तो डिमांड उतनी होगी नहीं, तो इस वजह से उन्हें कम रेट मिलेगा. आप समझ रहे हो, फार्मर की प्रॉब्लम डबल होती है, उसकी डबल में नहीं है उसके साथ में. अगर अच्छा वेदर हुआ, बहुत बम्पर हुआ, बम्पर क्या बोलते हैं, बम्पर वो फसल हुई, बम्पर प्रोड्यूस हुआ उनका, तो प्रॉब्लम ये होगी कि सप्लाई ज्यादा हो गई, क्योंकि सबके लिए होगा वो, फिर सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड उतनी होगी नहीं, तो भैया सस्ते में बिकेगी, तो उनको तब भी नुकसान होता है ओवरऑल. और अगर सूखा पड़ गया, कम फसल हुई, तो वैसे ही उनके पास में बेचने के लिए कुछ नहीं है. यू अंडरस्टूड माई पॉइंट कि व्हाई फार्मर्स बिकेम गरीब और वो हमेशा गरीब से रहते हैं, ये उसका एक पॉइंट है. आर यू अग्रीइंग विद दिस पॉइंट, या मतलब मैं पढ़ा रहा हूं बस सबको लग रहा है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, सुनना है इसको. रिलेटेबल ये लॉजिकल है कि नहीं ये बातें सब? हाँ सर, ठीक है. अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा वो हम लोगों के तरह इंसान है फार्मर्स भी. अरे भैया कभी बेटी की शादी है, कभी कोई घर में बीमार हो गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई उसका उठावनी करनी है, ये करनी है, 1000 तरह के काम होते हैं उनके लिए भी घर पे.
ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि वो लोगों को रेगुलरली उनको पैसे की जरूरत रहती है, रेगुलरली उन लोगों को पैसे की जरूरत रहती है। अब वो पैसा कहां से आता है उनके पास में? या तो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था मार्च में, जिसका पैसा मिला था अप्रैल में, क्योंकि उनको एक ही बार पैसा मिलता है, अंडरस्टैंड। देखो मैं और आप लोगों को क्या है, हमको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाती है, लेकिन उन लोगों को जो भी पैसा मिलेगा एक ही बार मिलेगा, और उनको उसी पैसे को इकट्ठा करके लाइफ मतलब उसको पूरा 5-6 महीने चलाने होते हैं, 7-8 महीने चलाने होते हैं, ठीक है। तो आप समझो इस लॉजिक को कि उसको रेगुलरली अब कोई चीज आ गई तो उस वजह से उस टाइम पर जो होता है उनका पैसा खर्च हो जाता है, उनका पैसा बचता नहीं है। तो दे आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन, पहले क्या होता था, हेवीली डिपेंडेंट अपॉन साहूकार एंड ऑल दीज पीपल, कि भैया साहूकार होता है, गांव में ही एक बड़ा सा आदमी होता है, उसको खूब सारे पैसे होते हैं, कोई गरीब सा फार्मर उनके पास में जाता है, कहता है जी मुझे 1 लाख रुपए दे दो आप। कह रहा अच्छा 1 लाख रुपए चाहिए तेरे को? कह रहा हाँ जी। चलो भाई ठीक है, ले 1 लाख रुपए, ठीक है, ये ले पेपर, इस पे अंगूठा लगा दे। और फार्मर तो अनपढ़ होता है, पहले की बात बता रहा हूं आपको, फार्मर तो अनपढ़ था, उसने लगा दिया अंगूठा। अब उस अंगूठे में उसने लिख लिया, स्पेसिफिकली लिख लिया उसमें कि भैया मैं इसको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, और 1 लाख रुपए देने के बाद में मैं इसको हर महीने 5% ब्याज दूंगा, 5% ब्याज दूंगा। तो 1 साल में ब्याज ही 60,000 रुपए हो जाता है, ठीक है। और होता क्या था कि वो 1 लाख रुपए लेके अपने नॉर्मल काम पूरे करता था, फिर उसकी फसल को वो बोता था। और देखो फर्टिलाइजर के लिए भी पैसा चाहिए, बीज के लिए भी पैसा चाहिए, पानी के लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज के लिए उसे पैसा चाहिए होता है, ठीक है। और घर के खर्च के लिए भी पैसा चाहिए होता है उसको। तो क्या होता है, उसके बाद वो फसल बोता है, करता है, 6 महीने मेहनत करता है, ऑल दैट। जैसे ही उसकी फसल तैयार हो जाती है, ठीक है, तो साहूकार पर्चा लेके पहुंच जाता है अपना, उसके खेत में ही पहुंच जाता है, खेत में। यहीं से ही हमारा मंडी का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। वो खेत में ही पहुंच जाता है, खेत में कहता है कि देखो ऐसा है, तुमने 1 लाख रुपए लिए थे और 5% के हिसाब से तुम्हारे 1 साल में तुम्हारे 1,60,000 रुपए हो गए हैं, लाओ मेरा पैसा दे दो। अब अगेन फार्मर के पास में तो कहां से पैसा आएगा ना, उसका तो कमाई ही वो चीज है, और तो कुछ कमाई है ही नहीं उसकी। तो वो कहता है कि चलो ऐसा करो, तुमको पैसा देना है मेरे को, और तुम्हारी ये फसल कितने की होगी? 2 लाख रुपए की होगी, है ना। तो एक काम करो, तुम मेरे से 40,000 रुपए ले लो और सारी फसल मुझे दे दो। और वो 40,000 रुपए देके उसको सारी फसल उठा के अपने फर्दर बेच देता है। वो 2-2.5 लाख रुपए से कमा लेता है, 3 लाख रुपए से कमा लेता है। फार्मर के पास कितना आया? सिर्फ 40,000 रुपए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स वेंट इनटू डेट ट्रैप, मतलब डेट ट्रैप में चले गए। अब फिर 40,000 रुपए बचे उनके पास में, फिर वही घर के खर्चे, कोई पैदा हुआ है, कोई मरा है, कोई कुछ हुआ है, कोई किसी का दवाई दारू हुआ है, 1000 चीजें हैं उसके अंदर, है ना। और वो डेट ट्रैप, अब फिर उसको फर्टिलाइजर के लिए पैसे चाहिए, उसको बीज के लिए भी पैसे चाहिए, उसको पानी के लिए भी 1000 चीजों के लिए पैसे चाहिए, उसको घर में खाना खाना है उसके लिए पैसे चाहिए। वो फिर उसी साहूकार के पास पहुंच जाएगा कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो, फिर वो 2 लाख रुपए का 5% ब्याज लेगा उससे, और ऐसे करते करते वो जो फार्मर है गरीब ही रह जाएगा, ठीक है। वो एक डेट ट्रैप में फंस चुका है, कर्जे के ट्रैप में फंस चुका है। that is one of the major reasons कि जो कि फार्मर सुसाइड होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मली अभी चल इंडिया में ये फार्मर सुसाइड इस वजह से, वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस, क्योंकि उतने बड़े डेट ट्रैप में फंस चुके होते हैं वो। तो सरकार को उस 50-60s में नेहरू जी को समझ में आया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। तब उन्होंने ये कानून बनाया कि फार्मर अपनी पहली सेल जो है मंडी में आके ही करेगा, मंडी में आएगा और मंडी में आके ही पहली सेल करेगा। अदरवाइज वो कहीं और ना खेत में कर सकता है, ना उस मंडी के बाहर वो सेल कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? रीजन बीइंग क्योंकि सबको दिख रहा था कि भैया ये बेचारे डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं इस चक्कर में।
इसीलिए पहली सेल वो मंडी में ही करेगा. कॉन्सेप्ट ऑफ APMC. Is that very clear with everyone? If anyone having any question, please do ask me now. Am I audible? तुमने सुना कि मैंने जो बोला आप लोगों को? Yes sir. Was it interesting to know कि भैया APMC कैसे आया है? देखो मैंने ओरिजिन तुम्हें बताया APMC कैसे आया है. Yes sir. अब बेसिकली APMC आने का रीजन हमें समझ में आ गया. ये भी समझ में आ गया कि अब तक ये फार्मर्स को फ्रीडम क्यों नहीं थी. बेसिकली दे वर ट्राइंग, मतलब द बिल्स, द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स. मैंने आपको ये भी बताया कि वो गरीब क्यों रहते हैं, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट रेगुलरली क्यों होती है, ये भी मैंने आपको समझाया. ठीक है. इनफैक्ट मैंने ये भी बताया कि फार्मर सुसाइड क्यों होते हैं, बहुत बड़ा रीजन है डेट ट्रैप उनके लिए. ठीक है. और ये भी आपको समझाया कि APMC क्यों बना, मंडी ऐसी क्यों बनी, क्या रीजन था उसका, कैसे ये ओरिजिनेट हुई. अब दोबारा से इस क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं. दिस प्रपोज्ड लेजिस्लेशन seeks to give freedom to farmers to sell their produce outside the notified APMC market yards, mandis. ये उनको एक फ्रीडम देता है ताकि लोग मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच पाए. अब आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर. उनका यही है दिमाग में, भैया पहले की तरह हो जाएगा, हम सब पहले की तरह ही हम सब फंस जाएंगे. बहुत सारे फार्मर्स के दिमाग में यही बात है. ठीक है. और भड़काया भी जाता है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स. हाँ भैया भड़का रहे हैं, हाँ भैया ऐसा हो जाएगा, तुम फिर से गरीब हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड ऑल दैट. देखो प्रोटेस्ट करने का रीजन, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है. वी अंडरस्टूड कि फ्रीडम, व्हाई देयर वाज नो फ्रीडम टू द फार्मर्स, और व्हाट इज APMC, ये भी हमें समझ में आ गया. सर तो मंडी में आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ, मतलब ऐसी क्या प्रोटेक्शन है, मतलब वैसा कुछ. हाँ वो बताएंगे, APMC के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाई APMC एग्जिस्ट. पहले तो भी हमने ये बात करी APMC होती क्या है, अभी हम वो भी बात करेंगे कि वहां पे होता क्या है. गेटिंग माय पॉइंट, कि APMC में कैसे प्रोटेक्शन उन्हें मिलती है वो भी बताएंगे. वो डेट ट्रैप से कैसे बचते हैं. हाँ डेट ट्रैप से कैसे बचेंगे वो भी बचेंगे. थैंक यू. आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर लिसनिंग टू मी. आई थॉट दैट तुम लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हो, मुझे लगा मैं ही बोले जा रहा हूं बस. आई एम हैप्पी. हु वाज इट? सर मी त्रिशा. ओके. तो दैट मीन्स एक स्टोरी में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है कि हाँ सर अब ये डेट ट्रैप से कैसे बचेंगे, ये बताओ सर जल्दी से. आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू जनरेट दैट इंटरेस्ट इन यू कि अब कैसे है. चलो ठीक है. अब इसके आगे क्या है, वी विल डिस्कस दैट. तो सर एक बड़ा पोर्शन APMC में बेचता ही नहीं है, मतलब सारे मार्जिनल फार्मर्स से ही. तो वो भी बात करेंगे. ठीक है. देखो हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ये APMC क्या चीज है. अगर सही बात है तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत बुरा हाल है उस चीज में, बहुत बुरा हाल है. ठीक है. पर ये हमें लॉ समझना है तो पहले लॉ में लिखी हुई चीजें समझनी है. हमने पहले हम लॉ समझ रहे हैं. देखो हमारा कॉन्सेप्ट है फार्म बिल्स, है ना, तो हम लॉ समझ रहे हैं. लॉ में ऐसा क्या है, आपसे ये तो बात पूछी जाएगी, साथ में पहले आपको लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मेरा मानना ये है. ठीक है. हम पहले लॉ को समझ रहे हैं कि जो लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है. Okay, we'll go ahead. This is aimed at facilitating remunerative prices through competitive alternative trading channels. So, okay. अब क्या है this मतलब, this का क्या मतलब है यहाँ पे, this का मतलब tell me please so that I can understand you are listening to me. This मतलब selling outside APMC. No. This मतलब bill. I'm talking of bill. A bill.
बिल इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, मतलब बेटर प्राइसेस मिले, फैसिलिटेट हो ताकि उनको बेटर, फैसिलिटेट कैसे होगा कि भैया अब वो आउटसाइड एपीएमडी मंडीज भी बेच सकते हैं अपना, है ना। फैसिलिटेटिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस थ्रू कॉम्पिटिटिव alternative trading channels. What are alternative trading channels? मतलब अब मंडी के बाहर भी मैं बेच सकता हूं, जैसे कि मैं किसी कंपनी में जाकर ही, मेरे पास बहुत 10 टन आलू है, तो मैं मैकडॉनल्ड्स की कंपनी के पास में गया, उनको बोला कि भैया मेरे आलू ले लो। पहले मुझे क्या करना पड़ रहा था, मैकडॉनल्ड्स को भी एपीएमसी आना पड़ता था और मेरे को भी एपीएमसी जाना पड़ता था, है ना, और वहीं पर ही हमारा ट्रेड हो सकता था। अब क्या होता है, मैकडॉनल्ड्स, मतलब आप खुद समझो, फार्मर मंडी तक भी जाएगा और मैकडॉनल्ड्स भी मंडी से सामान को लेके जाएगा, तो इससे हो क्या रहा था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो कि यहाँ मंडी तक उसके हो रहे थे और जो मैकडॉनल्ड्स के हो रहे थे, तो मैकडॉनल्ड दोनों चीजों को कंसिडर करता था, है ना, और उनको कम रेट्स देता था। 40 रुपए किलो की बजाय उसको 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए किलो के हिसाब से दे देगा। पर अब सोचो अब क्या होगा, अब वो आलू वाला डायरेक्टली विल गो टू मैकडॉनल्ड्स कि भैया ये लो, ठीक है, और आप पहले आप मुझे वहां पे दे रहे थे, अब मैं चाहता हूं मुझे 25 रुपए दे दो, क्योंकि मैंने आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो मैंने बचा ही दिया, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो रहा है। सो दीज आर ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स। अभी डायरेक्टली वहीं पे जाकर भी डील कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि मैकडॉनल्ड्स वाला उसके खेत के बाहर आ जाए कि भैया मुझे आलू दे दो। पहले ये सेल कहां हो सकती थी, सिर्फ एपीएमसी मंडीज में हो सकती थी। अब ये सेल जो है, द सेल कैन हैपन कहीं पर भी, गोडाउन में भी हो सकती है, वेयर हाउसेज में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो उससे क्या होगा, अब आप खुद सोचो, जब मैं एपीएमसी में बेच रहा था तो 25 रुपए बेच रहा था और 25 के भी कम ही मिलते थे, बिकॉज मुझे वहां कमीशन देना पड़ता था। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है कमीशन। मुझे वहां पे कमीशन एजेंट्स को कमीशन भी देना होता था, तो एज अ फार्मर मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ता था भाई, यहां से वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर वहां जाके जो भी मुझे प्राइस मिला उसमें से मुझे कमीशन एजेंट्स को कमीशन भी देना पड़ता था, है ना। इन द सेम वे मैकडॉनल्ड्स वाला वहां पे आया, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, वो तो उसी में लगाएगा ना अपना रेट। सेकेंडली, जिस कमीशन एजेंट के थ्रू उसने लिया, उसमें उसको भी उसने मतलब पैसे मैकडॉनल्ड से ही पैसा दिया, तो कमीशन एजेंट का अच्छा खासा कमीशन बन गया। अब ये ओवरऑल क्या हुआ, ये कटा कहां से, ये सारा पैसा कटा कहां से, ये फार्मर में से कटा। अब सोचो कि 3 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने मतलब 2.5% होता है, 2.5% होता है बेसिकली, 2.5-3% डिपेंड करता है, वो अलग अलग हो सकता है। 2.5% कमीशन उसने फार्मर से लिया और 2.5% कमीशन उसने मैकडॉनल्ड से लिया, है ना। तो ये सारा का सारा 5% बेसिकली फार्मर के से ही कटता है, बेसिकली तो नुकसान है भैया, इजंट इट, तो नुकसान है। तो इसी चीज को अगर वो डायरेक्टली मैकडॉनल्ड्स के गेट पे जाके बेचेगा तो उसको बेटर, मतलब ये कमीशन देना नहीं पड़ेगा, तो वो जो कमीशन वाली चीज थी वो मैकडॉनल्ड से डायरेक्टली इनको मिल जाएगी। अब दोबारा पढ़ते हैं, दिस is aimed at facilitating remunerative prices through competitive alternative trading channels. Now you understood competitive alternative trading channels. So, but I have a question. इसमें Yeah, please. जरूरी तो नहीं है कि this should always work in the favor of the farmer. मतलब जैसे अगर हम बोले कि 2-3 farmers जाके मैकडॉनल्ड्स को बोले कि हमारा आलू ले लो, but then McDonald's will have the power, right? वो तो ये भी बोल सकते हैं कि फार्मर ए तो मुझे 20 रुपीज में दे रहे हो, तुम 40 में दे रहे हो, तो मैं क्यों खरीदूं? Very good. This is the opposition. Good. I am happy that you are now, तुमने खुद से सोच ली ये बात, यही तो प्रोटेस्ट है उनका। हाँ, exactly. And then ultimately it will also affect the consumer, because अगर मार्केट में एक ही बंदा है जिसके पास सारा फ्रूट या प्रोड्यूस है, then they can also control the prices by stopping the supply. इसी के लिए तो वो Very good. I am extremely happy to listen. ये सारे प्रोटेस्टिंग रीजंस बता रहे हो मेरे को आप। सर इसी के लिए तो वो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, ताकि ना नहीं, एमएसपी पे आ रहे हैं, अभी हम एमएसपी पे आ रहे हैं, डोंट वरी, वी आर कमिंग टू एमएसपी आल्सो। आई एम हैप्पी महक, देखा, this is what happens when you understand things,
मतलब आप बेसिक से समझो तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है. ये प्रोटेस्टिंग रीजंस हैं. ये रीजंस है दैट बिग कॉर्पोरेट्स विल हैव एन एज ओवर द स्मॉल फार्मर्स और वो उनको अल्टीमेटली दबा के रख लेंगे. Yes, sir. यही प्रोटेस्ट है. अगर आप ढूंढोगे ना प्रोटेस्टिंग रीजन तो उनमें से यही रीजन निकल के आएंगे मैं जो आपने बताए हैं. Yes, sir. एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी टू लिसन टू दैट. मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है बताओ मेरे को. Yes, sir. ओके. अब इस बिल में क्या चीजें हैं, इस बिल में क्या मेजर मेजर फीचर्स हैं. एक तो ट्रेड एरियाज आउटसाइड एपीएमसी हमने बात ही कर ली है. ठीक है. जब ये ट्रेड एरियाज आउटसाइड एपीएमसी हो गया है तो पहले क्या होता था. पहले जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसका जो डेजिग्नेटेड एपीएमसी है तो उसकी मंडी है वहीं पर ही बेच सकता था. मतलब ये भी नहीं कि दूसरे एरिया के मंडी में जाके बेच सके, दूसरे एरिया की मंडी में जाके बेच सके, ये भी नहीं हो सकता था. मतलब सपोज करो आई एम स्टेइंग इन नोएडा, तो नोएडा की जो मंडी है अगर मैं फार्मर हूं तो मैं नोएडा की मंडी में ही जाके बेच सकता हूं. मैं गाजियाबाद की मंडी में जाके नहीं बेच सकता, मैं फरीदाबाद की मंडी में जाके नहीं बेच सकता, मैं दिल्ली की मंडी में जाके नहीं बेच सकता. पर जब मैंने ये बोल दिया ट्रेड एरियाज आउटसाइड एपीएमसी मैंने अलाउ कर दिया है तो अब मैं गाजियाबाद की बेच सकता हूं, मेरी मर्जी है. ठीक है. मैं फरीदाबाद की मंडी में भी जाके बेच सकता हूं, मेरी मर्जी है. मैं दिल्ली की मंडी में भी जाके बेच सकता हूं, मेरी मर्जी है. मैं दिल्ली की मंडी में ना बेच के मैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा मतलब कंपनी है उसको मैं जाके बेच दिया, ये भी मैं कर सकता हूं. ठीक है. सो देखो व्हाट इज इट, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट दोनों इससे फैसिलिटेट हो जाएगा. ठीक है. अगेन ऑनलाइन ट्रेडिंग विल ऑल्सो बी देयर. ठीक है भैया लिस्ट करा दो, ये भी इन प्रोसेस है. ठीक है. ऑनलाइन ट्रेडिंग का जैसे भैया आप समझ ले अमेजोन पे कोई चीज बिक रही है ऐसे ही मैंने अपना अपना जो अपने आप को लिस्ट कराया, रजिस्टर कराया और उस पर मैं अपने वो करा सकता हूं. ये सब चीजें भी हो सकती हैं. ठीक है. इट विल कम अप. नाउ द लास्ट थिंग इज बिल में है दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. इसमें क्या है, बिल में ये लिखा हुआ है कि अगर एक फार्मर और दूसरे में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, एपीएम मतलब फार्मर और जिसके साथ उसने जिसको उसने बेचा उसके साथ में कोई झगड़ा हो जाता है तो एसडीएम लेवल का आदमी एक कंसिलिएटरी बोर्ड बनाएगा. कंसिलिएटरी बोर्ड में दोनों पार्टीज को P1 P2 पार्टीज को बुलाया जाएगा और उनको कंसिलिएशन कराया जाएगा कि तुम देख लो आपस में लड़ झगड़ लो और ये सब वो सब. अगर यहाँ पर मतलब आपस में सेटलमेंट कर लो, वो कहेंगे कि भैया तूने इतना पैसा क्यों दिया, तुमने इतना क्यों दिया, तुम थोड़ा बढ़ा दो, तुम ये कर दो, तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत किया तुमने ये, और वो वहीं पे सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं. अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर एसडीएम के पास जाता है. ठीक है. और फिर ऊपर ऊपर चलता चला जाता है. इसमें सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है सो देयर इज नो जुडिशियल रेमेडी. मतलब आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो. ये इसका सबसे बड़ा प्रोटेस्टिंग रीजन है. ये तो ब्लंडर है. सॉरी सर ये तो काफी सीरियस ब्लंडर टाइप लग रहा है हाँ. फार्मर्स के लिए. अब देखो इसके भी रीजंस हैं. ठीक है. कोर्ट में इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीजें हैं. बट ये एक बात है कि जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल नहीं है आपके पास में. तो ये इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्टिंग रीजन है कि इस वजह से प्रोटेस्ट भी हो रहा है. ठीक है. ओके. we'll see this slide later on. First we will see APMC. Now why it exists, इस बात की सबको दिमाग में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? टेल मी. हो चुकी है सर. आई होप आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इस चीज में. कैन यू प्लीज जस्ट गिव मी अलाउ मी 1 मिनट. मेरे को गला में बहुत सूख रहा है मेरा. जस्ट गिव मी 1 मिनट.
Okay, sorry for the interruption. Now सर मैंने जितना उस बिल को मतलब उसके ऑफिशियल गजट को पढ़ा था, उसमें तो शायद सिविल कोड की बात थी कि जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी मतलब काम करेंगे, उनके साथ एनफोर्समेंट में सिविल कोर्ट रहेगा। तो इस तरीके से एक बैकग्राउंड कोर्ट का सर मतलब ये तो इन्वॉल्वमेंट तो दिख रहा है। तो सर बिहेवियरली पता है, देखो सुनो, बिहेवियरली वो रहेगा नहीं, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि क्या होता है ना, दे विल ट्राई टू डाउनसाइज कि ये प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा वो खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब आप कुछ समझो, कंसिलिएटरी बोर्ड बनेगा, ठीक है। जस्ट सी, पहले पहले आप जुडिशरी के बैकग्राउंड में जाओ, जुडिशरी के बैकग्राउंड में जाओ। जुडिशरी के बैकग्राउंड में इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं कि भैया उनके पास में कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ सर, वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली बिहेवियरली वो चीजें होंगी नहीं, ठीक है। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट जुडिशियल इंटरवेंशन हो। इसके लिए क्या है, इसके लिए एक सोल्यूशन भी आया था कि भाई ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं। ट्रिब्यूनल्स का भी हाल सेम ही है। सॉरी, ट्रिब्यूनल्स का भी मतलब ट्रिब्यूनल्स का दूसरे सेक्टर्स में भी हाल ऐसा ही है जैसा जुडिशियल अगेन कोर्ट वही का है। है। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है पहले हमें वो समझना पड़ेगा, तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मेरा एपीएमसी और एमएसपी पढ़ाने का पूरा आज का मेरा वो है टॉपिक है। तो विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास कि भैया अगर आपको पढ़ना है तो मैं ट्रिब्यूनल भी पढ़ा दूंगा, व्हाट इज ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में क्या चीजें होती हैं, क्यों बनाया जाता है इस तरह का ट्रिब्यूनल। तो बस आप ये समझ लीजिए, मतलब अभी ये समझ लीजिए कि भैया वो रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ दिस जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं है, तो वो चाहते हैं कि भैया ऐसा भी कुछ हो, उनके लिए मैकेनिज्म प्रॉपर्ली जुडिशरी को हो। मतलब ये जो एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के लोग होते हैं, तो सरकार के प्रेशराइज देम टू सेटल इट इन द फेवर ऑफ द कॉर्पोरेट्स और इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स, व्हाटएवर इट इज। फाइन, सो लेट्स गेट बैक टू अवर APMC. So why we understood that APMC should exist? Hi, Anna. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we're going to benefits of APMC. अब क्या है, एक APMC डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ की फर्स्ट प्रोड्यूस जो है फर्स्ट टाइम सेल होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर ऑक्शन हॉल होता है कि मेरे पास में इतना है, इतने का देना है, उतने का देना है, बताओ जी इतने का देना है कि नहीं देना है आपको। 100 रुपए क्विंटल, 100 रुपए क्विंटल, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे से ले जाइए 100 रुपए क्विंटल में के हिसाब से आप 1000 क्विंटल ले जाइए, 2000 क्विंटल ले जाइए मुझसे। तो इस तरह से एक ऑक्शन हॉल होता है। यहाँ पे ना कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं, दे आर रजिस्टर्ड इन द APMC, ठीक है। अब क्या होता है, गांव का जो आदमी फार्मर होता है वो बेचारा हर बार पे ये डर रहता है कि भैया मेरे जो खेत का जो सामान है वो लेके भाग ना जाए, मेरे खेत का सामान को लेके भाग ना जाए। और अगर भाग गया तो भैया मैं किसके पास जाऊंगा, मेरे को तो ना समझ है, ना पढ़ा लिखा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो क्या होता है, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट्स होते हैं। ये जो फार्मर्स होते हैं कमीशन एजेंट्स को बेचते हैं, वो फिर फर्दर बेचते हैं, या फिर ये इन दोनों को मिलाते हैं और फिर मतलब उनकी डील कराते हैं, ठीक है। वहीं के वहीं वो पैसा दे देते हैं उनको, कमीशन एजेंट अपना बीच में कमीशन ले लेता है, ठीक है। ये ऑक्शनिंग भी होती है, ये ऐसे कमीशन एजेंट्स भी होते हैं। बाकी ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मल दुकान वाले हैं वो आ जाते हैं उस मंडी में, ये फार्मर भी चले जाते हैं मंडी में, वो चाहे तो बिना कमीशन एजेंट्स के थ्रू या चाहे तो कमीशन एजेंट के थ्रू उनको भी बेच सकते हैं, ठीक है। और इन सब की लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। इसका एक मेजर बेनिफिट और है, ये देखो, ये सब तो मैंने आपको समझा दिया। Okay, one question was there कि how it would save the farmers from exploitation. वो question address हो गया इसमें। There was one girl who was asking this question कि भैया how they were there protecting the farmers from any exploitation. Yes, sir. ठीक है, ऐसे exploitation से बचेंगे क्यों? क्योंकि वो registered होता है कमीशन एजेंट, वो कहीं भागेंगे नहीं और रेगुलरली उन्हीं के साथ में डील करते हैं, तो उन्हें भरोसा है कि भैया ये आदमी सही है, ठीक है। तो इसलिए उनका कमीशन भी होता है और वो रजिस्टर्ड भी होते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप रजिस्टर्ड आदमी के खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, वो सब भी होता है मैकेनिज्म, ठीक है। दैट्स हाउ दे वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम
any such debt trap. अब इसका एक और बेनिफिट होता है, that is called MSP. फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. वेरी गुड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अब मुझे I will take 15 minutes to explain this. Just before that, I would like to know your understanding what is MSP. सर बेसिकली MSP एक मतलब मार्जिनल प्राइस सेट किया जाता है पर क्विंटल क्वांटिटी पे बहुत सारी कमोडिटीज के लिए. ज्यादातर ये कैश क्रॉप्स पे नहीं होता, सीरियल्स और पल्सेस पे होता है जो लॉन्ग टर्म चलते हैं. तो उनके ऊपर ये एक प्राइस सेट किया जाता है कि अगर आप बेच रहे हैं और आप ये वो मिनिमम प्राइस है जिसके नीचे आपको पूरी कंट्री में, मतलब नॉर्मली बाय लॉ नहीं है ये, बट बाय रूल ऐसे ही होता है कि इसके नीचे किसी को मतलब अपना जो फार्मर है उसको इसके नीचे सेल नहीं करना चाहिए. और अगर इसके नीचे उसको सेल करने की कंडीशन आ रही है तो गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर कर सकती है थ्रू FCI के गोडाउन्स, और उसको MSP वाला जो मिनिमम प्राइस जो डिसाइडेड है फॉर कमोडिटीज वो मिल जाएगा थ्रू गवर्नमेंट. ओके फाइन. और कोई anyone else who want to explain that? Okay, I think Priyanshu has explained it in a rightly fair manner, but he has his own way of explaining. I have my own way of explaining, so I would rather go into the origins, that how it originated, because when we understand things from the origin, fine, तो हमको better तरीके से समझ में आती है चीजों को, हम बेटर तरीके से समझ पाते हैं. मेरा मानना ये है. So should I go ahead explaining this MSP? Are you ready to listen? हाँ या ना बोल दो यार, मेरे को थोड़ा सा, ना मैं तुम्हारी Yes, शक्ल sir. देख सकता ना कुछ देख सकता. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I hope all of you are with all your ears. Okay. MSP minimum support price. तो हुआ ये 1950s 60s में हमने, हमारे पास में गेहूं की प्रोडक्शन ही नहीं थी, खाने के लिए था ही नहीं बिल्कुल भी. 43s में एक बार बंगाल फेमिन आया था, लोग भूखे, बहुत बुरी तरह से भूखे मरे थे लोग. तो हमें क्या होता था, हर बात के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, अमेरिका से, कभी यूएसए से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भीख मांगनी पड़ती थी कि प्लीज हमें खाना दे दो, कुछ हमारे लोग भूखे मर रहे हैं प्लीज. सो शास्त्री जी थोड़ा सा इन बातों का बुरा लगता था हमको, बहुत बुरा लगता था. तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, विल डू समथिंग आउट ऑफ इट, वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट फॉर फूड. तो उन्होंने बहुत फेमस, लाल बहादुर शास्त्री ने एक फेमस कोट दिया था. व्हाट वाज दैट? जय जय जवान जवान जय किसान. वेरी गुड, एक्सीलेंट. जय जवान जय किसान. जवान तो हो गया आर्मी, क्योंकि उस टाइम 1965 में वॉर हुआ था, है ना. जय किसान, जय किसान भैया, किसान का मैं बात कर रहा हूं आपसे. सो इफ एज अ कंट्री आई वांट टू बी सेल्फ रिलायंट ऑन फूड प्रोडक्शन, so they've called one person whose name was अरे भैया उसका नाम तो बता दो, बहुत फेमस आदमी है वो, आज भी है. स्वामीनाथन. वेरी गुड, MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन. और इवन एक और भी था, अंग्रेज था वो. अंग्रेज मतलब सर वर्गीस कुरियन. नहीं यार, वर्गीस कुरियन यार, वर्गीस कुरियन इंडियन आदमी है यार, क्या कर रहे हो यार. He is the father of white revolution. Yes. वर्गीस कुरियन को तुम अमूल फॉरनर के- बन रहा हो, अमूल के- इंडियन है भैया वो आदमी. हाँ सर, नाम से लगता नॉर्मन है. बोरलो. नॉर्मन बोरलो सुना है कि नहीं सुना लोगों ने? यस सर. तो MS स्वामी, वो हाई यील्डिंग वैरायटीज आपने पढ़ा होगा, हाई यील्डिंग वैरायटीज उसने बनाई थी. तो MS स्वामीनाथन ने कहा कि हाँ भाई, हम हाई यील्डिंग वैरायटीज इंडिया में भी बनाएंगे, कराएंगे. अब प्रॉब्लम, हाँ भाई ब्रीडिंग करेंगे, ये सब करेंगे. अब प्रॉब्लम क्या आई, MS स्वामीनाथन सिर्फ क्या कर सकता है? MS स्वामीनाथन एक ब्रीड ला सकता है, ये कि ये अच्छी ब्रीड है, मतलब इसको अगर हम खेतों में उगाएंगे तो हमें बहुत सारा क्या मिलेगा, गेहूं मिलेगा. बट अल्टीमेटली वो गेहूं उगाना किसने है?
स्वामीनाथन तो जाएगा नहीं हल लेकर कि भैया मैं सारे खेतों को आज ही जोत दूंगा मैं, isn't it? अल्टीमेटली ये काम करेगा कौन? फार्मर्स करेंगे। अब फार्मर का कहना था कि मैं ये क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं ये, गेहूं क्यों उगाऊं मैं अपना सब्जी उगाऊंगा, फल उगाऊंगा, मेरी मर्जी है, ठीक है। जबकि हमें बेसिकली उस वक्त चाहिए, या वो कहेगा मैं कॉटन उगाऊंगा, या वो कहे कि भैया मैं तो इंडिगो उगाऊंगा, उसकी मर्जी है, जो मर्जी उगाए, उसका खेत है, आया ना, हम सबकी भी मर्जी चलती है। चाइना तो है नहीं, ठा गोली मारी कि भैया तू ये उगाएगा, ठा चल साइड में हो, मैं तुम्हारी जमीन हड़प लेता हूँ अब मैं सरकार। इंडिया में ऐसा तो नहीं होता, वो कहेगा कि जी मेरे को तो इंडिगो में ज्यादा, अब इंडिगो मतलब इंडिगो अगर उगा रहे हैं तो डाई है, वो तो एक तरह की खाने की चीज तो नहीं है, वो कॉटन उगा रहे तो कॉटन भी खाने की चीज नहीं है। एंड इंडिया वांट्स टू बी सेल्फ रिलायंट इन द फूड प्रोडक्शन। तब ये कॉन्सेप्ट आया एमएसपी का, उन फार्मर्स को बोला गया कि आप गेहूं उगाइए, ठीक है, और ये फैक्ट है जितना मर्जी उगाएंगे आप, हम खरीदेंगे आपसे, इतने प्राइस पे कम से कम खरीदेंगे और हम खरीदेंगे, यू बी एश्योर्ड विद दिस, ठीक है। या फिर जितना मर्जी उगाइए, आपको एक सर्टेन अमाउंट का प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको। जब भी आपकी अगर वो बिकेगा तो आपको से कम हम कोई आपसे नहीं खरीदेगा, ये हम एज अ लॉ बना देंगे या एज अ मतलब ऑर्डर बना देंगे, वॉट एवर इट इज। तो लोगों को लगा कि एक मतलब कि भैया हाँ अगर हम ये उगाएंगे तो भैया कोई ना कोई तो हमारा मतलब सरकार तो खरीद ही लेगी, सरकार तो खरीद ही लेगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, मेरा सरकार तो खरीदेगी, कोई और खरीद लेगा, वरना सरकार खरीदेगी। दैट अश्योरेंस वाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब क्या है, मैं अगर फल सब्जी उगा रहा हूं वहां पर, या ऐसा कुछ प्रोडक्ट उगा रहा हूं जो कि मतलब खराब होने का डर है, लेकिन मुझे ये भी पक्का नहीं है कि भैया मतलब वो अगर मतलब वो सामने वाला खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो मैं वो छोड़ के गेहूं उगाने लग जाऊंगा मैं। इसीलिए पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं उगा, क्योंकि उन्होंने यही बेल्ट चूज की थी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा गेहूं उगाया जा रहा है, और तब से लेकर अब तक रेगुलरली वो गेहूं चावल ही उगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है परमानेंटली कि भैया ये तो हमारा प्रोक्योर हो ही जाएगा, हमसे खरीद ही लिया जाएगा, और मिनिमम इसी प्राइस पे खरीद लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड प्रोक्योरमेंट, कि हाँ ये सरकार ये खरीदेगी ही खरीदेगी मुझसे। ये जब उनके दिमाग में था तो उन्होंने जो है उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस, वो प्रोक्योर करते रहे, और इस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान ऐसे किसान बन गए जो बहुत ही वेल्दी किसान थे वाकई में। इसीलिए जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो it itself is contrasting that a farmer is having their own tractors to protest। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। उनके पास में बहुत पैसा है, अगर आप किसानों के पास जाएं तो भैया उनके पास में बुलेरो और बड़ी बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ी नहीं है। पंजाब में जितना पैसा है यू कैन नॉट इमेजिन। आप में से कोई पंजाब में है, गांव देखे वहां के? सर गए हुए हैं, Do you agree with me or I'm just saying कि भैया मेरे को अपनी बात थोपनी है इसलिए? सर आई एग्री विद यू, मैंने खुद देखा है ना, वो इसीलिए अमीर। क्यों? It's more show off actually. सॉरी, वो मतलब शो ऑफ ज्यादा है rather than कि इतनी होल्डिंग्स कुछ का मतलब मेजॉरिटी में नहीं है ये लोग। नहीं, then you are wrong। क्योंकि पता है मेजॉरिटी में थे, कनाडा चले गए,
समझ रहे हो आप? Sorry? कनाडा कनाडा कनाडा। वो सर अभी भी है जा रहे काफी हैं, तभी तो मेजॉरिटी वो हाँ बिल्कुल हरियाणा, है, है ही पंजाब बहुत एंड है। वेस्टर्न यूपी वाला बेल्ट। वेरी मतलब वेस्टर्न यूपी वाला बेल्ट, हरियाणा एंड पंजाब, बहुत पैसा है इन लोगों के पास में। हाँ सर काफी है, मतलब बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स इन्हीं फार्मर्स के पास है। वेरी गुड। हाँ बहुत पैसा है इनके पास में, और ऐसा ही पैसा जो है इनके मंडियों के पास में भी है। एपीएमसी के जो कमीशन एजेंट्स हैं उनके पास भी बहुत बहुत पैसा है। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ एमएसपी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं एमएसपी के बारे में कि एमएसपी क्या चीज होती है और कैसे ये काम करता है। ये समझ, ओरिजिन समझ में आ गया क्यों ऐसा है एंड ऑल दैट, कैसे ये आया। तो एमएसपी जो होता है प्रोक्योरमेंट, बेसिकली ना ये एमएसपी भी जो है इसको हम कर सकते हैं ऐसे डिवाइड कि भाई एक तो प्रोक्योरमेंट बेस्ड है, सरकार हर साल 22 या 23 क्रॉप्स पे, या उनका जब मर्जी करे जो भी क्रॉप को इंक्लूड कर सकता है, जिस भी क्रॉप को एक्सक्लूड कर सकते हैं, उस पे एमएसपी डिसाइड करती है कि भैया ये इतने कम रुपए से नहीं बिकना चाहिए, ये इतने कम रुपए से नहीं बिकना चाहिए, गेहूं इतने से कम, चावल इतने से कम, और ऐसे करके नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई फल सब्जी है, दाल है वगैरह जो भी है, इसके अंदर जितनी भी चीजें होती है आप देख लीजिएगा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस कि कौन कौन से, इनफैक्ट मुझे सारे पता भी नहीं है। आप देख लीजिएगा, ये आपका काम है, आप पढ़ लीजिएगा, आप अपना रिसर्च करेंगे तो। मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना। प्रोक्योरमेंट बेस्ड क्या चीज होती है, मतलब ये कि अगर आपने गेहूं उगाया तो भैया आप जब उसे बेचने गए मंडी में, ठीक है, तो बेचने गए तो अगर आपको उस मंडी में ये बता दिया गया 22 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा गेहूं, खरीदा जाएगा, वहां पे एमएसपी डिसाइड कर रखा है। अब क्या है कि कोई भी आपको 22 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी आप 16 मतलब ऐसे करके 18 ले लो या जो भी है, मतलब वो कुछ भी मतलब दे नहीं रहे हैं उसको, या कोई खरीदने वाला ही नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नहीं है खरीदने वाला। तो वो जो मैं गेहूं का जो टैंकर लेके, मतलब जो ट्रैक्टर लेके जो मैं वहां गया, कोई खरीदार ही नहीं मिला मुझे अगर गेहूं का, तो मैं क्या करूंगा, वो ट्रैक्टर ले जाऊंगा एफसीआई के गोडाउन में, और मैं बोलूंगा कि लो भैया ये 10 क्विंटल है, 100 क्विंटल है, 200 क्विंटल है गेहूं, आप मुझे 22 रुपए किलो के हिसाब से इसका पैसा दे दीजिए, और वो वो आप गोडाउन में ले, मतलब आपसे वो ले लेगा और आपको पैसा दे देगा, और आप अपने घर चले जाओ, खुशी खुशी घर चलेगा भाई, एफसीआई के गोडाउन से कर लिया। इज इट वेरी क्लियर व्हाट इज प्रोक्योरमेंट बेस्ड? सर मुझे एक डाउट था या कि प्लीज। जो एमएसपी पे सर जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग गेहूं खरीदेंगे, और जहाँ जहाँ पर फिजिबिलिटी है फार्मर मतलब उगा सकते हैं वहाँ पर उगाया, तो सबके सब ने उगाया, और गवर्नमेंट के भी कुछ कैपेसिटी होगा ना, उतना ही ले सकते हैं, बाकी की वही बता रहा हूं मैं आपको, यही वो कैपेसिटी नहीं है, तो सर यही वो कैपेसिटी नहीं है। तो भी आपको सर मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताऊं प्रियांशु, फूड सूरज, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गेहूं सड़ जाता है, अच्छा तो गेहूं सर सड़ जाता है वहां पर, तो क्योंकि सर वहां उसका स्टोरेज प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, कोई तो सर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी जितना आएगा। यही तो एमएसपी है, और क्या है एमएसपी? ऐसा नहीं कह सकते वो ऐसा एफसीआई वाले नहीं कह सकते कि भैया अब हमारा तो कोटा पूरा हो गया है, अब आप भाड़ में जाओ, हमें नहीं पता। तो सर इसका फायदा फिर सिर्फ पंजाब हरियाणा ने ही क्यों लिया, बाकी स्टेट्स क्यों नहीं ले पाए फिर वो? क्योंकि यहाँ पर ही वो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, मैंने बताया था नहीं आपको, नहीं यहीं के सर लोगों को बोला गया था। सर ठीक है, एफसीआई मना कर देता है सर, एफसीआई हाँ आप मना कर देता है सर, ये क्योंकि बहुत बड़ा जी फ्लॉ है सर एफसीआई का, कि एफसीआई के पास जगह सर, होते हुए भी मना होता है, एंड और वो इवन नई एजेंट्स जगह होती जो तो भी एजेंट्स मना होते हैं होता है। फिर वो एजेंट्स होते हैं फिर पैसे मांगते हैं उनसे, और बोलते वेरी हैं कि गुड, आई विल इतना एक्सप्लेन यू दैट लीगली, सर टेक्निकली दे कैन नॉट डिनाई दिस, टेक्निकली दे कैन नॉट डिनाई दिस। अब मैं आपको बैक द स्टोरी बताता हूँ होता क्या है। एफसीआई के गोडाउन में मैं फार्मर पहुंच गया, चार ट्रैक्टर लेके कि मेरे पास 100 क्विंटल गेहूं है, ठीक है, 4 ट्रैक्टर भर के ले गया मैं वहां पे। अब एफसीआई गोडाउन वाला कहेगा जी पहले ही मेरे पास बहुत सारा काम है, इतना सारा काम है, मैं इसको आप ना 3 दिन रुक जाओ,
3 दिन रुक जाओ, आपको 2-3 दिन लगेंगे, आपका हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो मैं यार ये सोचूंगा यार मैं 4 दिन ना बैठूं, उन 4 ट्रैक्टर्स का मैं पेमेंट करूं, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैक्टर भी क्योंकि हायर रहेंगे वहीं पे ही खड़े रहेंगे, ठीक है। और फिर मैं एक बात और सोच सकता हूँ कि मैं घर ले जाऊं, फिर मैं वापसी ले आऊं, फिर 4 दिन बाद में कहीं वो मुझे दोबारा से बोलने लगेंगे कि और 4 दिन लगेंगे, तो मैं वहां से जा भी नहीं सकता। तो मैं क्या सोचता हूँ, बाहर ना FCI के कुछ कुछ यही आप कमीशन बोल रहे हो ना, ये जो इनफॉर्मल जो एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं ऐसा है, आप 22 रुपए किलो देना है आपको, इतने सारे हैं, मेरी अंदर सेटिंग है, ठीक है, आप एक काम करो, मुझे 18 रुपए किलो में दे दो, मैं आपसे सारा अभी ले लेता हूँ और अभी आपको पैसा दे दूंगा, बाकी अंदर मैं काम करा दूंगा आपका, बाकी मतलब मुझे दे दो एक तरह से, मैं इसको अंदर जाके भेज दूंगा। अब जो वो एजेंट होता है, जैसे नेक्सस एजेंट का FCI के ऑफिसर्स के साथ में नेक्सस होता है, ठीक है, वो 18 रुपए का लेते हैं उससे, और बाकी जो 4 रुपए होता है दोनों आपस में बांट लेते हैं, 2-2 रुपए के हिसाब से दोनों को पैसे मिल जाते हैं। टेक्निकली एंड लीगली दे कैन नॉट डिनाई एनी ऑफ द फार्मर्स कि भैया जाओ आपका हम नहीं लेंगे, देयर इज नो कोटा इन्वॉल्व इन इट। सर मेरा डाउट फिर भी अभी भी वही डाउट है मेरा सर, MP में हुआ, बिहार में हुआ, वहां पे तो फिजिबिलिटी है, गेहूं का बहुत यील्डिंग है वहां पे, वो लैंड भी फर्टाइल है, तो वहां पे लोग मतलब वहां के फार्मर्स थे, उन्होंने क्यों नहीं मतलब फार्मिंग किया फिर उसका ज्यादा? होता जैसे है, हरियाणा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता एग्जैक्टली है, होता है तो होता सबसे है, ज्यादा फायदा, कम होता है बहुत, सबसे ज्यादा फायदा फिर उनको ही क्यों मिला, पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को ही क्यों मिला? क्योंकि जब ये चीज आई थी हाइल्डिंग वैरायटीज, इसी एरिया में बेल्ट को चूज किया गया था भाई MS स्वामीनाथन, अच्छा, ओके, ठीक है, यही बेल्ट को चूज किया गया था, ये सॉइल वैसी है ना, आप अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ये सॉइल वैसी है। अगर मैं यही चीज गुजरात या महाराष्ट्र की रेड सॉइल में उगाने लगूं तो उतना नहीं होगा, प्रोडक्शन थोड़ा ना होगा मेरा। सर नहीं होगा। मैं आगरा से हूँ, मेरा डैडी मेरे पिताजी फार्मर हैं सर, फिर भी हम लोग गेहूं की जगह हम लोग दूसरा फसल करते हैं सर, हम लोग सनफ्लावर सीड्स हुआ, जैसे राई बोलते हैं जिसको, वो सब पे ज्यादा फोकस करते हैं, पेठे पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि सर वो तो उससे ज्यादा फर्टाइल सॉइल तो कोई है नहीं, यमुना के जो है, यमुना और गंगा के इधर जो है, उससे ज्यादा कोई है ही नहीं सर, वो लोग इतना फोकस क्यों नहीं किए फिर जितना जो? देखो ये अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल फोकस भी हो जाता है, ठीक है, जब इतना देखा FCI में ऐसा करप्शन है, ये है, हजार बातें होती है, देखो क्यों नहीं फोकस किया गया। मैं पर्टिकुलरली इस बात पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि उस एक फार्मर ने क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो फर्टाइल भी एक चीज होती है, सॉइल की फर्टिलिटी भी एक चीज होती है भाई। अगर मैं ऐसी सॉइल पे कुछ उगाने लगूं, मैं यहाँ पे पंजाब हरियाणा में कॉटन उगाने लगूं तो शायद उगेगी भी नहीं, है ना। मैं उस बात से एग्री करता हूँ वो बात से, लेकिन तो MP में ओवरऑल क्या है, इसलिए ज्यादा जो फार्मर्स को, पंजाब हरियाणा वालों को फार्मर्स हुआ, इसीलिए प्रोटेस्ट भी सिर्फ पंजाब हरियाणा वाले फार्मर्स ही कर रहे हैं, और कोई कहाँ कर रहा है, कौन सा फार्मर कर रहा है प्रोटेस्ट इंडिया में? वही क्यों? पॉइंट है क्योंकि भैया वो सबसे ज्यादा इसमें ये काम करते थे। सर बेसिकली जब भी ये MSP निकालता है, साथ में गवर्नमेंट एक प्रोक्योरमेंट अमाउंट भी निकालता है ना, कि ये एक लिमिट रहेगा, अपर लिमिट, जिसको हम प्रोक्योर करने वाले हैं। नहीं, प्रोक्योरमेंट का लिमिट मेरे हिसाब से तो नहीं है, सर ऐसा हो ही नहीं हमेशा सकता। अदरवाइज हमेशा अगर वो ऐसी एक बात होती, एस्टिमेटेड अमाउंट निकालते हैं सर, क्योंकि कितना FCI के गोडाउन्स में भी जगह कम होती है सर, तो उसका डेप्ट वैसे भी अभी आप देख ही रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, इस साल पे करना है, तो वो जो पूरा का पूरा जो लिमिट होता है ना कंट्री का, तो ये लोग एक एस्टिमेटेड हिसाब रखते हैं कि इस साल इतने से ज्यादा नहीं लेना है, इससे ज्यादा लेने लगेंगे तो वो खराब होने लगेगा, उसको कोई फायदा नहीं है सर। पर इट्स जस्ट एक वो अनुमान लेते हैं सर, वो कोई लिमिट नहीं होती आई गेस। लिमिट नहीं हाँ, होता कोई है, लिमिट ऐसे कोई वो नहीं है, technically एस्टिमेट है यही कि तो हमारे बड़ी इतने प्रॉब्लम है। खाली अगर हैं आप तो इतना ही देखेंगे, लेंगे। बिकॉज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी शॉर्टेज, FCI के गोडाउन में गेहूं Overflow सड़ कर रहा है, ठीक है। चलो लेट्स पुट अ रेस्ट टू इट, कि भाई मतलब वो कैसा होता है, बट मैंने जैसा आपको बताया इस तरह से ही है, यू कैन गूगल इट आउट फर्दर कि भैया वो कोटा ऐसा होता नहीं है कुछ भी, बट वी अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोक्योरमेंट बेस्ड, हम ये समझ गए व्हाट इज प्रोक्योरमेंट बेस्ड, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइस बेस्ड। मैंने कोई फसल उगाई तो सरकार बताती है प्रोक्योरमेंट बेस्ड MSP है। दूसरा था प्राइस बेस्ड, कि मैंने कोई दाल उगाई सपोज, ठीक है, मसूर की दाल उगाई मैंने, मंडी में उसको, ठीक है, तो वो प्राइस बेस्ड है। मतलब क्या है कि जो उसकी सेलिंग होगी वो होगी तो कम से कम इतने प्राइस पे होगी, और अगर कोई खरीदार नहीं है तो कोई सरकार खरीदेगी नहीं उसको,
यू गॉट माय पॉइंट? अश्योरेंस नहीं है कि यार कोई ना कोई खरीदेगा ही खरीदेगा उस दाल को। ये प्राइस बेस्ड एमएसपी है कि भाई अगर बिकेगा तो 25 रुपए किलो पे बिकेगी मसूर की दाल, अगर नहीं बिक रही तो नहीं ही बिक रही है। तो इसका फायदा क्या हुआ फिर? इसका फायदा ये हुआ कि जो भी अगर एटलीस्ट देखो प्रोक्योरमेंट में तो सरकार ने ले लिया, उनको एश्योरेंस हो गया, क्योंकि हमें तब किस चीज की जरूरत थी? खाने की, कि रोटी तो मिल जाए, कम से कम चावल तो मिल जाए खाने के लिए, वो चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी हमारी। ताकि क्या है कि लोग कम से कम उनको ये एश्योरेंस मिले कि भैया दाल तो लोग खाएंगे ही, तो वो उगाएं उसको, दाल को प्रोड्यूस करें, सीरियल क्रॉप जो भी है, फल सब्जी वगैरह जो भी उसके अंदर आती है एमएसपी के अंदर, कि उनको ये तो रहे कि भाई बिकेगी तो कम से कम इतने में बिकेगी, नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो एमएसपी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। व्हाट इज दिस? नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, ठीक है। देयर इज वन एनपीके रेशियो जो कि 4:2:1 समवेयर अराउंड ऐसे होना चाहिए सॉइल का। अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ एमएसपी, भैया गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल, फर्टिलाइजर गेहूं चावल, देयर इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। वो तो रहा ही नहीं, हर आदमी उसके अंदर फर्टिलाइजर घुसेड़े जा रहा है, घुसेड़े जा रहा है। सॉइल की एनपीके रेशियो खराब हो गया है, 8:2:1 के करीब पहुंच गया है। इसीलिए कि बस wheat and rice, no rotation of crops is happening, because rotation of crops, इसीलिए अगर आपको पता हो तो सरकार ने एक स्कीम लाई है, इसके बारे में पता है आपको? सॉइल हेल्थ कार्ड। यस सर। सरकार लेके आई है सॉइल हेल्थ कार्ड कि भैया तुम्हारा जो है एनपीके रेशियो खराब हो रहा है, इस वजह से क्या है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हम अगर गेहूं उगाएंगे तो हमारा पक्का है प्रोक्योरमेंट, है ना, तो क्या है उसमें एनी हाउ जो है वो बस गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल यही उगाए जा रहे हैं बस। उससे क्या हो रहा है, सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है, एनपीके रेशियो खराब हो रहा है। ठीक है, उससे क्या, अब उस चीज को देखने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई है कि भैया आप अपने सॉइल की टेस्टिंग कराएं और उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स उगाएं। ऐसी भी बातें चल रही थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोक्योरमेंट बेस्ड, व्हाट इज प्राइस बेस्ड का डिफरेंस। प्रोक्योरमेंट में देयर इज अ गारंटी दैट गवर्नमेंट विल प्रोक्योर इट, प्राइस में देयर इज नो गारंटी। बट हाँ, अगर जब भी देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, लेकिन हाँ जब भी कोई भी सेलिंग होगी एटलीस्ट इतने प्राइस पर ही होगी, इससे कम पे नहीं होगी। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन? Sir, is sugarcane also covered under MSP? यस 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 यस। Sir, वो किस type के शुगर procurement? केन के कॉन्टेक्स्ट में उसको एफआरपी बोलते हैं। बेसिकली वो यही चीज है, एमआरपी एमएसपी है, उसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। शुगर केन के केस में इसको एफआरपी बोलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के बेल्ट में बहुत सारा शुगर केन होता है, बहुत सारा। हाँ सर, वो procurement related एंड ऑल रोड, तो वहां पे नहीं है बस शुगर मिल्स है बस। सर वो किस टाइप का प्रोक्योरमेंट है, मतलब एमएसपी है प्रोक्योरमेंट फेयर, है? ये भी इस तरह का ही है। बेसिकली एमएसपी का शुगर केन के लिए एफआरपी बोल दिया। अब ये मैंने रीजन नहीं फाइंड आउट किया कि इसको एफआरपी क्यों बोलते हैं, है कॉन्सेप्ट वही है लेकिन। ओके सर, ठीक है। सर एक बार प्राइस प्रोक्योरमेंट एक बार फिर से एक लाइन में बता दीजिएगा। प्राइस प्रोक्योरमेंट में क्या है कि जब भी मैं अपनी कोई भी सीरियल क्रॉप, फ्रूट जो भी है, ठीक है, अगर मेरे को बेचना है, मैं मंडी में जाके बेचता हूं, तो अगर वो बिकेगा तो वो एमएसपी के प्राइस पे बिकेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। कोई उसे ये गारंटी नहीं है कि कोई खरीदेगा ही खरीदेगा उसको, लेकिन अगर बिकेगा तो वो इसी प्राइस पे बिकेगा। प्रोक्योरमेंट बेस में क्या है कि अगर वहां पे वो एमएसपी के प्राइस पे बिक गया तो ठीक है, वरना सरकार के गोडाउन में ले जाओ आप, वहां पे जाके उसको इस प्राइस पे खरीदा जाएगा टेक्निकली। तो प्राइस प्रोक्योरमेंट कहाँ किस केस में होता है? सॉरी सर, in what case we procure राइस और व्हीट और राइस प्रोक्योरमेंट बेस्ड होता है, बाकी सब प्राइस बेस्ड है। ठीक है सर, आप इसे देख सकते हैं। प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट तो मतलब जैसे अगर प्राइस बेस्ड एमएसपी देखा जाए तो वो तो रूल नहीं है ना, मतलब लॉ या रूल कुछ नहीं है, वो तो जस्ट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है भैया। ये 23 क्रॉप्स जो बताई जाती हैं उसमें बताया जाता है कि इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना।
लेकिन सर वो प्रोक्योरमेंट सिर्फ 2 हाँ पर सर होता वो है। बाई लॉ या लीगली वो नहीं है, क्योंकि आज भी ऑर्डर से ऐसे होता है, ऑर्डर से होता है, ठीक है, कि भैया हाँ इसको इतने में ही बिकना है, ठीक है, वो तो हाँ ऑर्डर मतलब और वही बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव वो काम है। एक अंडरस्टैंडिंग है, वरना मैंने शुगर केन को एमएसपी से मतलब एमएसपी के 10% पे बिकते हुए भी देखा है सर। वो तो इसलिए होता है, दीज आर ऑल करप्शन हैपनिंग, ठीक है। वो सर पर वो इसका भी टेक्निकली मैंने, प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा डिमांड है सर कि हाँ एमएसपी बिल्कुल है, को बिल्कुल है, ये सब ये, मतलब लीगलाइज करें, कि एमएसपी विथ प्राइस लीगलाइज हो जाए। पर एमएसपी विद प्राइस को लीगलाइज करने में बहुत बड़ी, मेरे को जो लगता है, मैं जो मानता हूं, ये फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक टाइम आएगा कि भैया गेहूं गेहूं और वो इतना ही बंद हो जाएगा, सर फिर क्या मेरा करोगे सर, तुम? हाँ सर मेरा वही पॉइंट है सर। सर कि सर ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब हम लोग हमारा जो फसल उगा जो लेके गए, तो एफसीआई कुछ पैरामीटर्स पे चेक करता होगा, ये सब होना चाहिए तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो कोई भी कुछ भी उठा के लेके आ जाएगा गेहूं के नाम पे। और सूरज सूरज सूरज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस बारे में नहीं पता है, मैं हाँ, बी मीइंग वेरी और ऑनेस्ट विद सर यू, मुझे सर नहीं पता है, लेकिन लॉजिकल चीज है, क्योंकि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड में ये चीज होती है कि है, क्वालिटी देखी जाती है। हाँ है। और सर दूसरा मेरा पॉइंट था श्योर। सर, हाँ दूसरा मेरा एक पॉइंट था ये सॉइल हेल्थ कार्ड पे। सर अगर वो सॉइल हेल्थ कार्ड है और हम चेक करा मतलब बोलते हैं चेक करने के लिए, तो फार्मर क्यों चेक करवाएगा? मतलब सॉइल को क्यों चेक करे? उसको कुछ कुछ बेनिफिट तो मिलता होगा ना कुछ तो। अरे बेनिफिट रीजन पता है क्या क्या है? मिलता है? हाँ, बेनिफिट वो अपने आप, वो एक कार्ड कार्ड बनवा दे, आपकी सॉइल में कौन सी फसल की अच्छी प्रोडक्शन होगी, वो उसको गाइड करने के लिए एक्सपर्ट्स आते हैं कि ये हाँ, आप उगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके ठीक है। ओके ओके, हाँ, अगेन, ठीक है। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उगाऊं या ना उगाऊं, मेरे मेरा मेरा सॉइल हेल्थ, मेरी सॉइल हेल्थ तो एक्सपर्ट्स आए बताए कि आपके में ये दिक्कत है, ये चीजें, आप ये उगाओ वो उगाओ, वो ठीक है। क्योंकि मैं सर मैं कैसे लिंक कर रहा था, मुझे ऐसा लगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड इसलिए बनाया है ताकि उनको पता चले उनकी सॉइल का हेल्थ कैसा है, और ताकि उनका जो यील्ड आएगा ना उसको ना जो पैरामीटर्स पे चेक करते हैं उसको मीट कर जाए, इसलिए शायद से उनका हेल्थ नहीं हेल्थ कार्ड नहीं नहीं बनाया नहीं, देखो ये एक रीजन हो सकता है, पर एंटायरली ये रीजन नहीं है उसका। उसका ये भी है। ओके रीजन है ताकि हम एक्सपर्ट से बता सके कि भैया इसके अंदर हमें क्या क्या कितना कितना डालना है, और कौन सी चीज की हम प्रोडक्शन करें, ताकि हम सॉइल की हेल्थ को हम वो रख सके। कहीं ऐसा टाइम ना आ जाए कुछ आने वाले टाइम में, जैसे दिल्ली में आजकल कितना एयर पोल्यूशन है, कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन है, पहले आज से 20 साल पहले हमने तो कुछ स्टेप्स लिए होते तो शायद इतना पोल्यूशन नहीं हुआ होता। तो यही स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह चीजें बनाई गई हैं। ओके ओके। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि भैया मतलब व्हाट इज एमएसपी, व्हाट इज एपीएमसी, इसके आपके मेरे हिसाब से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी आपकी। यस सर, यस सर। यस सर, यस काफी अच्छा था। ठीक है। सर वो एपीएमसी में जो ये जैसे सूरज ने बोला ना कि क्वालिटी चेक एक्चुअली होता है, मेरे फैमिली में फार्मर्स हैं तो हमको थोड़ा आइडिया है। क्वालिटी चेक जब भी आप ले जाते हैं ना कोई भी चीज, तो आप मतलब ज्यादातर फार्मर्स से खुद ही एक्सपेक्ट किया जाता है, नहीं तो अरथिया होते हैं वही लोग खुद ही कर लेते हैं, जो मतलब ये बीच में बोलते हैं ना जो क्वालिटी चेक 2.5% कमीशन लेते हैं, हाँ, तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं। वो लोग बेसिकली वो लोग अलग अलग तरीके का अब चावल और ये गेहूं वेहूं में तो इतना नहीं होता, उसमें पहले से फार्मर्स ही अलग करके जाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हाई यील्डिंग को कहाँ अच्छी क्वालिटी को कहाँ बेचना है कहाँ नहीं। पर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कैश क्रॉप है तो वो लोग खुद अलग कर देते हैं और उसके हिसाब से उनको बेचा जाता है। एफसीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है, एफसीआई पे अगर आप बेचने जाएंगे ना तो एकदम मतलब अच्छे से अच्छा भी और नॉर्मल से नॉर्मल भी उसको सेम ही कंसिडर किया जाता है। ओके ओके, चलो ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आई एम नॉट अवेयर। देखो मैं साफ सीधे बता दूं, मैं पढ़ाई करता हूँ इसलिए मुझे चीजें पता होती हैं, ठीक है, मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ मैं, ठीक है, नहीं, पढ़ता हूँ तो पता होता है, मैं उसकी डेप्थ में जाता हूँ वो मुझे समझ में आती हैं। अब कुछ चीजें मुझसे भी रह जाती है पढ़ने से, तो जो मैं नहीं पढ़ पाता वो मैं आपको बता भी नहीं पाता, पर मैं ये हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं सारी चीजें नहीं जानता हूँ, जो नहीं जानता हूँ तो मैं मना कर दूंगा, नहीं पता मेरे को, ठीक है। ओके, हमने सर एमएसपी समझ एक लिया, और डाउट है, पूछ लूं क्या? या प्लीज गो अहेड। सर जैसे वो सूरज ने उस पॉइंट पे पूछा था ना वीट के लिए, वैसा ही मैं एक और पूछना चाहता हूँ। उस टाइम पे तो आपने जैसे बोला कि पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए बहुत ज्यादा एमएसपी का प्रोक्योरमेंट वहीं से हो जाता है। राइस के केस में जो स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट में हिस्सा नहीं लेते, जबकि जो नहीं करते पता ही सबसे नहीं है ज्यादा उनको, वो। फार्मर्स को मैं आपको बता दूं पता ही नहीं है इस बारे में। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है दैट
only 6% of the farmers MSP का फायदा उठाते हैं। 94% को तो 94 में से कम से कम 70, 80, 90% को पता ही नहीं है MSP क्या चीज होती है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये। अच्छा, अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उन्हें ये पता ही Yes, sir. नहीं है। जब उन्हें Okay, ये sir. पता चलेगा तभी तो वो उस चीज का फायदा उठाएंगे। यार वो इतने गरीब हैं, शुरू से इतने ज्यादा गरीब हैं कि उन्हें पता ही नहीं है इन सब बातों के बारे में। और Okay, दिल्ली sir. और ये दिल्ली एनसीआर और ये पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के बेल्ट वालों के पास में इतना पैसा है, उनके बच्चे इतने ज्यादा पढ़ गए हैं। यार पंजाब में देखो, इज अ ड्रग कैपिटल, पूरा ड्रग वहां पर उड़ता पंजाब मूवी आपने देखी होगी शायद, ठीक है। सेकेंडली आधा जो है कनाडा, आधा पंजाब कनाडा में है। टोरंटो को मिनी पंजाब बोला जाता है, ठीक है। कितना पैसा, ये पैसा ये ताकत जो है ना, ये जो चीजें होती हैं, ये सब पैसा आने के बाद आती हैं सब चीजें। किसी भी गांव के खेत में चले जाओगे तो भैया वहां पे एक से एक बढ़िया बाइक्स चल रही हैं जो हम नहीं कर सकते भैया। हम भी सोचेंगे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चल रही हैं, दे आर डूइंग इट। उनको ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन वो आधे ज्यादा लोग कनाडा में काम करते हैं, चाहे जैसे भी है। तो वे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता नहीं है। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एमएसपी, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एपीएमसी, और इसके जो मतलब ये जो चीजें हैं इसका। अच्छा, इसका प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि प्रोटेस्टर्स ये चाहते हैं कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए। मैंने आपको बताया लीगलाइज मेरे समझ में क्यों नहीं किया जाना चाहिए, मेरी समझ में, ठीक है। बाकी इसके लिए फॉर और अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल बिल्स, आई थिंक हमने ये बिल को हमने ढंग से पढ़ा है। व्हाट इज इट, फार्मर प्रोड्यूस बिल क्या चीज है, सर प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि ये लीगलाइज हो जाए। हाँ, प्रोटेस्टर्स ये चाहते हैं इसके में लीगलाइज हो जाए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दी जाए इसकी। लास्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दिस। ओके, ये जो बिल जो हमने पहला पढ़ा, पहले बिल में क्या था, इट विल ओपन मोर चॉइसेस फॉर फार्मर्स, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, हेल्प देम गेट बेटर प्राइसेस। समझ में आ गया? इट विल ऑल्सो फार्मर्स ऑफ रीजन्स विद सरप्लस प्रोड्यूस, ज्यादा उनके पास बना हुआ है, टू गेट बेटर प्राइसेस एंड कंज्यूमर्स इन एरियाज। हाँ, पहले तो डेडिकेटेड मंडी में जाते थे, अब वो दूसरी मंडीज में इंटर स्टेट भी जा सकते हैं, विद शॉर्टेज एट लोअर प्राइसेस। समझ में आ गई बात? ये अगेंस्ट, ओके। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया आपको। ये जो मंडी होती है, इस पे एक मंडी फीस भी लगती है जो सरकार लगाती है। अब क्या है, सरकार विल लूज आउट रेवेन्यू, इसलिए स्टेट जो है पंजाब का जो स्टेट है इज एंटायरली अगेंस्ट, क्योंकि वहां कांग्रेस गवर्नमेंट है। मंडी फीस लगती है, तो जब वो आउटसाइड, देखो टेक्निकली क्या है, मंडी में मंडी की फीस देनी पड़ती है, ठीक है। मंडी में क्या है मैं बताना ही भूल, सॉरी। तो मंडी में मंडी की फीस लेनी पड़ती है, और बाहर वो मंडी के बाहर वो फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। वहां पे अगर आप बेचोगे तो आपको मंडी की फीस देनी पड़ेगी। तो आप खुद ही सोचो, मंडी की फीस देनी पड़ेगी और बाहर वो फ्री में बेच रहे हैं उस चीज को। मंडी में कमीशन एजेंट्स को भी पैसे देना पड़ेगा, बाहर में कमीशन एजेंट को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बिहेवियरली तो सबके सब बाहर ही बेचेंगे। तो टेक्निकली देखो, लॉ ये नहीं कह रहा है कि मंडी बंद कर रहे हैं, लेकिन बिहेवियरली मंडी बंद हो जाएंगी। मंडी कैसे बंद हो जाएगी अब आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हर आदमी सोचेगा यार मेरे को मंडी फीस भी देनी है, टैक्स और मेरे को कमीशन को पैसा भी देना है, इससे बढ़िया मैं बाहर किसी डायरेक्टली मैकडॉनल्ड्स वाले को बेचूंगा, तो ना तो मुझे मंडी फीस देनी पड़ेगी, ना कमीशन एजेंट देना पड़ेगा, मेरे को बेटर प्राइस मिल पाएगा मेरी उसका। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन? यस सर। तो स्टेट्स का जो पैसा है वो लूज करेगा रेवेन्यू बिकॉज ऑफ मंडी फीस। फार्मर सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड रजिस्टर्ड, आउटसाइड क्योंकि वो अपने बाहर एपीएमसी में बेच सकते हैं। ऑल्सो कमीशन एजेंट्स भी अपना पैसा खो देंगे टोटली, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली फार्मर्स ऑपोजिशन पार्टीज फियर इट में इवेंचुअली लीड टू एंड ऑफ एमएसपी। बाकी सबको इसलिए डर है कि भैया एमएसपी खत्म ना हो जाए, ठीक है। आज तो उन्हें पता है कि 22 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उनका ये है। अच्छा, ये देखो, बेस्ड प्रोक्योर एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, समझ में आ गया? प्रोक्योरमेंट सिस्टम में क्या है, ये वही प्रोक्योरमेंट सिस्टम है कि भाई खरीदेंगे कहीं ये सिस्टम खत्म हो गया तो पंजाब और हरियाणा वालों को पता है कि भैया हमारा तो एफसीआई गोडाउन में जाके हम बेच सकते हैं एंड ऑल दैट। समझ में आ गया?
यस सर। Okay. Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू हैव लाइक्ड इट, समझ में आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट आपके इनर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग फार्म बिल्स। देखो इसमें बिल्स पे भी कम ध्यान दिया है, कम भी नहीं, थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है, लेकिन अगर अब आप बिल्स को पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, अच्छा ये चीज है, ठीक है। इज दैट वेरी ओके? इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर Yes, गोइंग sir. टू सी, एमएसपी का भी देखेंगे, ये कौन कौन सी क्रॉप्स है। देखिए ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको व्हाट बताया, व्हाट इज एमएसपी, हु गिव्स इट, सरकार गिव्स इट, विच क्रॉप्स, ये आप खुद गूगल इट आउट करेंगे। हाउ का मैंने बता दिया है कि एपीएमसी में जाके, मार्केट में जाके कम से कम उतनी प्राइस पे बिकेगा। दूसरा प्रोक्योरमेंट बेस्ड होता है, एपीएमसी मतलब प्राइस बेस्ड वाला, प्रोक्योरमेंट मतलब हाँ ये दो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। तो विल रीड इट फर्दर, एमएसपी का जो थोड़ी डिटेल्स रह गई है वो हम देख लेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, हम बिल्स पे और ज्यादा फोकस करेंगे। अब हमने बेसिक्स समझ लिए हैं, अब हम बिल्स पे फोकस करेंगे, दैट हाउ दीज बिल्स, हमको जैसे हमें लाइन बाय लाइन पढ़ा इसको, ऐसे हम अदर बिल्स को उसके फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। सर Is ये it very PDF clear? शेयर कर दीजिएगा बस। पीडीएफ शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज डू। और बताइए, मैं सर को भेज दूंगा, सर आपके साथ शेयर कर देंगे। अचल सर, All right, sir. ओके। सर ये फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी अगर आप डाल दे तो और अच्छा है। अरे भैया सब बताएंगे, डोंट वरी। सर मेरे को एक डाउट था। या प्लीज गो अहेड मैम। सो आपने जैसे बोला कि एमएसपी का, आपने एक वो बोला दैट व्हाई एमएसपी शुडंट बी लीगलाइज्ड, बट आई मीन प्राइस बेस्ड एमएसपी तो हो सकती है ना लीगलाइज, इफ नॉट प्रोक्योरमेंट। हाँ देखो, मैंने वो, देखो ये मेरा ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग। देखो आप इसको कहीं कोट मत करना, कोट कर नहीं। सकते हो वैसे, ठीक है, बट ये कहीं कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ। देखो अब आप खुद सोचो, पंजाब हरियाणा में सिर्फ गेहूं चावल ही उगाए जा रहे हैं, एंड बिकॉज रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, हमने पढ़ा था रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, याद है हमने बचपन में पढ़ा करते थे 10th 11th की क्लास में, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होने से सॉइल की हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है, वो अच्छा रहता है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज गुड फॉर द सॉइल। पर बिकॉज हम रोटेशन करते नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया हम रोटेशन करेंगे तो भैया दूसरी अगर फसल तो मेरे को खरीदेगा नहीं, है ना, तो हम वो वाली फसल उगाए जो हमारे एश्योर्ड है, तो वो उगाए जा रहे हैं, उससे एनपी की रेशो खराब हुए जा रहा है, ठीक है, उससे एनपी की रेशो खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इट कैन क्रिएट कि सॉइल की हेल्थ ही खराब हो जाए उससे। नहीं, दैट आई टोटली अग्री विद यू, बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि एटलीस्ट एमएसपी मतलब प्राइस बेस्ड एमएसपी तो स्टिल मेक सेंस, राइट, दैट देयर स्टिल सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फार्मर्स। बट उसमें भी यही है ना, देखो एट द एंड ऑफ द डे दाल भी चाहिए ही होती है लोगों को, ठीक है, वो फिर वही चीज उगाते रहेंगे, मतलब देयर शुड बी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। बट क्या है कि एज सच कोई मतलब एक्सपर्ट जो है इस बात को नहीं बोलता, दैट्स माय थॉट प्रोसेस, दैट इट कैन लीड टू सॉइल का खराब होना, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि देखो ऐसा किसी को एश्योरेंस दे दिया जाना ना, देखो क्या होता है लाइफ में सबको स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एक आदमी को अगर एक आराम की जिंदगी मिल जाती है ना, तो वो मतलब उससे वो पूरे सिस्टम को खराब करता है, ठीक है, पूरे सिस्टम को खराब करता है। तो हमें वो आराम की जिंदगी, लेट देम स्ट्रगल, लेट एवरीवन स्ट्रगल, हम भी तो स्ट्रगल करते हैं, कोई चीज चाहिए होती है, बट हाँ कोई ज्यादा करता है स्ट्रगल, कोई कम करता है स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत आदमी को रेवेन्यू भी लूज आउट। अब हमें कुछ एनवायरमेंट के लिए भी सोचना चाहिए। हमने एक टाइम पे पोल्यूशन देखा रहा है, कुछ नहीं है भैया, डैम फैक्ट्रीज लगाए चले जाओ, आज पोल्यूशन की हालत देखो, अंदर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। Right. And I had another question. Agar if the states will also lose out on revenue because of mandi fee, so that will affect, I mean, all the states equally, right? Whether they're BJP ruled or Congress ruled. So I mean, तो मतलब ये फिर ऐसे, this is a pretty big point against the. प्रॉब्लम ये है ना कि मंडी हर जगह है ही नहीं, जैसे वेस्टर्न यूपी में है और ईस्टर्न यूपी में मंडी है ही नहीं, तो हमको अगर ईस्टर्न यूपी साइड कुछ भी बेचना होता है तो हमारे पास मंडी नहीं है, हमको बाहर ही बेचना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ईस्टर्न यूपी के बहुत सारे, गोरखपुर, जैसे मैं गोरखपुर से बंदी हूँ,
तो हमारा ज्यादातर फार्म का जो भी सेटलमेंट होता है वो वेस्टर्न यूपी होके जाके होता है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमको ईस्टर्न यूपी मतलब हमारे साइड ही रह के बेचना पड़ता है, तो उधर Okay, तो okay, मंडी I'm है ही not नहीं। aware of this कि मंडी इस जगह नहीं है. I'm not aware हाँ of सर, this because सर मंडीज केरला तो में है नहीं सर। है, एक्ट में वो mandate बिहार किया के हुआ बहुत है सारे कि एरिया में मंडी नहीं है। होंगी. सर मंडी तो है सर। एक्चुअली मैं भी लखनऊ से हूँ, तो यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में ये भी पड़ता है, पर यहाँ पे मंडीज हैं। ऑल्दो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट उस लेवल का नहीं होता है, बट मंडीज हैं हाँ, सर। ये सर हो सकता है कंसेप्ट चल रहा है। procurement उस प्रोक्योरमेंट level पे नहीं है नहीं. सर। गोरखपुर में 2 साइड से मंडी है, एक बंद हो चुकी है और एक सिर्फ बहुत बहुत कम प्रोक्योरमेंट लेती है। बस देखो कर्नाटका में है ही नहीं। लीगली और टेक्निकली मंडी होना है वहां पर, ठीक है. अब हाँ, वो चल रही है नहीं चल रही है वो एक अलग इशू है, ठीक है. वो मतलब चल रही है नहीं चल रही है, स्टेट्स विल लूज आउट रेवेन्यू, दैट्स फॉर श्योर. और हर स्टेट लूज आउट करेगा रेवेन्यू, ठीक है, वो भी पक्का है. पर क्या है, अल्टीमेटली बात ये है कि बहुत सारे स्टेट्स उसको इतना ज्यादा वो ले भी नहीं रहे, बिकॉज क्योंकि मंडी में उतना प्रोक्योरमेंट हो ही नहीं रहा है उनके, वो चल ही नहीं रही है उतनी. इसीलिए पंजाब हरियाणा वाले ज्यादा कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि भैया उनके प्रोक्योरमेंट बेस्ड क्रॉप्स को वो करते हैं ज्यादा प्रोड्यूस, ठीक है. और उनका मंडी खत्म होना मतलब, ये जो आड़ती बोलते हैं उनको, आड़ती बोलते हैं इनको, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, इनका तो पैसा ही खत्म, इनका तो बिजनेस ही खत्म सब कुछ, ठीक है. तो इवेंचुअली एवरी स्टेट विल लूज आउट रेवेन्यू. दैट्स वन ऑफ द प्रोटेस्टिंग रीजन. महक, आई एम हैप्पी कि तुम ना सारे प्रोटेस्टिंग रीजंस बता रहे हो मेरे को कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा होगा. आई एम हैप्पी. मैंने आई थिंक आपने पहले भी कुछ बताया था, वो भी प्रोटेस्टिंग रीजन था, ठीक है. तो ये सारे प्रोटेस्ट के रीजंस हैं. एंड आई एम हैप्पी कि मुझे पता चल रहा है कि देखो, बेसिक्स से बताने के बाद में, कॉन्सेप्ट्स के बताने के बाद में, ओरिजिन से बताने के बाद में आपको ये समझ में आया कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं. तो सर इस हिसाब से तो another protesting reason could also be कि this will also lead to unemployment, right? Because commission agents will lose out on their job also then. ओके ओके, तो कितने कमीशन एजेंट्स होंगे? मतलब ये तो I don't know. सर that's what I'm इन saying, रियलिटी मंडी लाख, तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख फार्मर्स कितने हैं, ठीक है. तो अगर आपको इतने बड़े चंक के लिए कुछ काम करना पड़े, उनकी डबल करने के लिए इनकम कुछ करना पड़े, ठीक है, तो यार, और उनको सैक्रिफाइस करना, उनको दूसरे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट. तो अगर बहुत ज्यादा लोगों को कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट मिलती है और कम लोगों को अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक जो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट या उनको पैसा बढ़ेगा, तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ नया. मैंने बताया कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हम चीजों को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है. जैसे वो टॉय से वो स्कूल के लिए एजुकेशन, बाहर जो पकौड़े बना रहा है, जो मतलब क्या बोलते हैं, आइसक्रीम बेच रहा है, उनको भी काम मिल जाता है, फिर उनके घरों में भी कुछ ना कुछ खाने के लिए आ जाता है. इवेंचुअली क्या है, ऐसे ही आड़तियों को कुछ ना कुछ नया काम मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी. Okay. Thank you, sir. Sir, mandi and existence of mandi and the commission agents and everything in reality सब जगह है, मतलब क्योंकि मैंने तो अपने मंडी में आज तक नहीं देखा. अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है. I hope you found it interesting. Fine. I think we have taken half an hour. I have consumed your half an hour extra, but I hope you have learned out of it. और आपको मजा आया होगा पढ़ने में. I think हम क्लास लेंगे दोबारा से. परसों की क्लास रखते हैं या कैसे, मैं एक बार सर से बात कर लूंगा और इसको हम फिनिश करेंगे फिर, ठीक है. ओके सर. Okay. Thank you, sir. Thank you Thank you, very sir. much for your patience listening.